Right. So let me first get your views on this. How did you find this particular mock in terms of difficulty level, in terms of logic, reasonableness, whatever you might have? So we had these 4 RCs, and then we had these 8 questions. So what's your view on this compared to, let's say, specifically the last couple of mocks? This time it was a moderate and somehow it can say easier than previous ones. Okay, so little moderate and little easier than previous one. Okay, Prince. सर मतलब आरसी तो 2 इजी मिल गए थे जिसमें Hmm. मतलब अच्छे स्कोर आ गए, Hmm. बट ये वीए बहुत गंदा गया, मतलब 2 ही 3 सही हो पाए। Okay. Yes, Lakshita. सर पहले मैं ज्यादा आरसी करती थी और वीए पे कम टाइम रहता था। इस बार थोड़ा चेंज किया था कि 2 आरसी किए एंड बाकी टाइम वीए पे। तो वो मतलब पर्सनली मेरे लिए अप्रोच बेटर लगा। एंड आरसी जो लास्ट आरसी था उस पे मैंने काम किया था कॉलेज में, तो इसलिए शायद तो इट मेड सेंस, बट So बेटर you got all correct in that. लास्ट में। यस, Last में. Okay, good. Yes, Sudeep. सर इस बार का वीआरसी मतलब कंपैरेटिवली इजी था और पैसेजेस इजी टू अंडरस्टैंड थे। लास्ट के 2-3 मॉक्स इतने मतलब मेरे सिलेक्शन प्रोसेस इतना गंदा था, वो मुझे ज्यादा डिफिकल्ट गए। इस बार का अच्छा गया है मेरा सेक्शन। Okay, good to know that. Yes, Gautam. Sir, compared to last MCATs, this was I found like pretty much somewhat easy, but in VA part, mine was really bad because when I am going through the solutions, all are correct. Either one or two options. In parajumble, there was some difference. Little variation. Okay. Yes. All right. So yes, see, so we'll go to straight to the first thing that we do is look at the All India scores. So that gives us an idea that yes, this was better than the last mock, because last time, if you see, cutoff was 12, and even before that, I think it was just 13. So the cutoff itself tells you that this was relatively easier. Again, the highest score last time was 45. So this time it has gone up to 53. And prior to that also, I think it was somewhere the same. So this tells you that this was found a little easier than previous ones. Now, as we see, the number of people who took it, 13,800. So last time it was 12,500 odd, because some of the students who are enrolled only in the mock series, they don't get certain mocks. So that's why the number varies. But roughly it's been, same 13, 14, 15. It's not gone beyond. So let's see how it goes in the next 8 to 10, 11 mocks. So again, 99 percentile, you would hit somewhere here, 35, 36, which is in line with CAT. Okay, so CAT 98, 99 is around 99, around 37. So this would be around 99. And then, okay, this was my score. So I just highlight it also to make some points. Okay, one was, yes, so this time I did all the 24 questions. Last couple of times I was not able to do so, because there was one passage that was particularly totally incomprehensible in the scheme of things. So this time it was not so. One could read all the passages and make some sense out of them. So out of these, some I've got my doubts on. We will discuss as we go along. Yes, 2-3 questions. Yes, I agree. I made some stupid mistakes. 1 or 2, maybe not read properly. Maybe in a little hurry, because I was trying to do all the 24 questions. So it gave me 49, and this was the percentile. So this was just a comparison. Last time my score was 41, and in fact before that it was 39. So this time, obviously, like everybody else, I also breathed a little easier. Coming to 98 percentile would be somewhere here, 98, right? And then going onwards, 97 and so on and so forth, 95 something, and then we go to the cutoff, okay, which is
85 percentile is your cutoff. So this is how this one panned out. Now, let's go to the questions. Okay, let's try to see the VF part first. This was an easy to moderate max. Okay, this was one question that should have been attempted by all and should have got correct. Reasonable level of skill if you have developed in parajumbles, then you should be able to get this correct, because so here you have certain clues here. No one knew where this ethereal essence lay, right? So this is connected to the first sentence, decided a mysterious elan vital, the force that brought inanimate objects to life, right? So there's a clear cut this, and although chemistry had come a long way, it still had a long way to go, right up to the closing years of this. Everywhere search for sometimes believed that they actually found things that weren't there. So obviously fourth se to start kar nahi sakte, because isme kuch bhi cheez nahi hai. No one knew where this, cannot start with this. Somewhere in all this cannot start. So the only sentence you can start with is 2, and then you go to 4. Then somewhere in all this there was a mysterious elan vital. So 1 and 3 are, as I said, कुछ इसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी ज़्यादा. We don't need to read this whole to make too much sense out of it. You can connect 1 and 3. आपको एक mandatory pair मिल गया, 2 opening statement मिल गया. So now you are left with only 2 options. So this doesn't make sense in the end, and therefore we come to this. So we don't need to really understand in depth. 4 and 1, how are they connected? Okay. So what he's saying is, although chemistry had come a long way, it still had a long way to go. So long way to go means lot many things to look for, which is given here in 4th, right up to the closing years. Everywhere scientists search for, sometimes believe they found things that just weren't there. So 2 and 4 are connected. Now where else to go? And 1 and 3, I've already made a pair. So I have no option, in fact. I try as you might, you will not be able to find any other. I asked for 4 and 1 because I had marked 2, 4, 3, 1. 3, 1 to ho hi nahi sakta na. See, when 1 and 3 are very clearly connected, there also resided a mysterious elan vital, the force that brought inanimate object to life. Mysterious. So no one knew where this ethereal essence lay. So what else can this refer to? There is nothing in any other sentence, isn't it? Okay, sir. Okay, sir. All right. So 2, 4, 1, 3. This was difficult. Okay, this was pretty difficult. Because we would be inclined to begin with 4, isn't it? War is with exclusively human activity. Animals eat each other, clash over mates, dominance. But absent the capacity to pursue chosen goals and values, they do not wage war. Now, contrary to Freud's conclusion that mankind has a universal instinct, wars of a continental scale lasting for years don't happen by this. So now, how do we decide whether 4 will start or 2 will start? How do we decide that? See, if you look at 4 has got even other species, animals, blah, blah, blah. But he's saying war is exclusively human activity. So this 4th sentence covers humans as well as animals. Whereas when you come to 2, you see they're just mankind. Contrary to Freud's conclusion, mankind has a universal instinct for hatred. So 4 and 2, so 2 will come after this. Then, in fact, the wellspring of every war. So he's saying wars don't happen by chance or by circumstance. सर एक बार 4 का दोबारा बता दीजिए. इसका 4 और 2 का सीक्वेंस कैसे देखेंगे? देखो 4 और 2 का सीक्वेंस ऐसे देखेंगे कि सबसे पहले तो ये बता रहा है कि वॉर जो है, तो एनिमल्स डोंट वेज वॉर. ओके, व्हाट ही इज सजेस्टिंग हियर इज दैट वॉर इज एक्सक्लूसिवली ह्यूमन. Animals don't engage in war, right? They eat each other, they clash over mates and all, but absent the capacity to pursue chosen goals and values within organized commitment, they do not wage war. That means war is basically exclusively a human activity. Now, rest of the sentences talk about why do wars happen.
this talks about that only humans wage war. Then this sentence tells you that war doesn't happen by chance or circumstance or instinct. In fact, the wellspring means the foundation or the origin or source of every war is what makes us human, which makes us human. Our capacity to think abstractly, to conceive, and to create. So 3 comes after this. Now your point is that whether to put 1 here or to put 1 here. Okay, that's because 4, 2, 3 is a block. To begin with, the causes of war and peace run far deeper than the movements of armies and troops, strategy and practice into the reasons why armies form and move at all. So, if we want to put it in the end, can we say that to begin with, the causes of war and peace run deeper than movements of armies? Or we begin with this, because he has given us a clue here. To begin with, the causes of war and peace run this. So we would rather put it at 1 instead of 2. Had this not been there, then we may have looked at it a little more carefully, that whether we can put it in the end. Because logically, he's saying wellspring of every war is this, and then cause of war runs deeper than the movements. But again, 3 and 1 are also not that well connected. So 1 can come in the beginning. So 1, 4, 2, 3 becomes the order. Sir, 4 के बाद why not 3, sir? मतलब of course you said 4 and 2 is a pair, but why not 3? 4 and 3. No. Yes, See, no 3 may. Okay, how do you explain then after 4 this in fact? Here, see, let's understand the essence of this sentence. Essence of this sentence is that war is exclusively human. War is not done by animals. Okay, animals don't engage in war. So we cannot say in fact the wellspring of every war is which makes us human. This is wellspring means the reason, the source of every war. So in fact, मतलब ये है कि हम पहले कुछ sentence बोल रहे हैं and then we are reiterating. तो इसलिए 3, 4 के बाद 3 नहीं आ सकता. Okay. All right. So difficult question, no doubt difficult question. And if you have not got it correct, don't rue or don't cry. Okay. इसमें अगर आपका ये सही नहीं है, हाँ, आपको रोने का हक बनता है. वो कब बनता है? अगर आपने इसकी वजह 3 मिनट खर्च कर दिए और फिर भी सही नहीं हुआ, तो आपको जरूर रोना बनता है. क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि, या बताता रहता हूँ मैं, कि इस तरीके के जो होते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से सेंस नहीं समझ में, जैसे देखो इसमें ऐसा नहीं है. दिस वाज द क्वेश्चन दैट शुड हैव बीन डन. Okay, this is not something like that. This is a difficult question, and if you're not able to make sense of it in the first 1 minute or so, then please mark, थोड़ा सा सोच के mark करके निकल जाओ. Don't waste 3 minutes or 4 minutes on this. It is not worth that. Okay, so that is the mistake that we should learn to avoid as we go along, not getting stuck with such things. Okay, let's go to the next question again. Now this says, इसमें 2-3 idea दिए हुए थे. Manufacturing is the most productivity intensive sector, and दूसरा it is linked to technology. Right? Technology is the fundamental variable. So therefore the sector that is linked to technology is the one that is most productivity, which has got the highest productivity. So यहाँ पे sequence इसका यही है कि manufacturing, because it is intricately linked with technology and technological breakthroughs, and it is therefore highly productive. So this is the kind of relationship that is there between these 3 elements here. So let's look at A, manufacturing's dependency. यहाँ पे ये इसके कारण गड़बड़ होगी. Okay, dependency on technological breakthroughs. There is nowhere he has said it is intimately linked to technology. Manufacturing is linked to technology, but he has not said that it is dependent on technology. So ये dependency के कारण ये गलत. Okay, otherwise suppose manufacturing यहाँ पे लिखा होता manufacturing strong links or manufacturing linked closely to technological breakthroughs or technology makes it far more productive. ये बिल्कुल correct हो जाता. But this dependency is the showstopper. Constant push for high productivity is why manufacturing creates more. ये बिल्कुल ही गलत है. This doesn't give you sense at all. Manufacturing is closely linked to technology, and that explains why only this sector. Okay, so this is again wrong. This one word rules it out. Manufacturing's higher focus on productivity compared to other sectors is intimately linked with technological breakthrough. So in sum में this seems to be the best answer.
इन सब में. Okay, I'm not saying this is the best summary that could be there. Yes, Shubham. सर इसमें सर थ्री मेरे को सर कंफ्यूजन थी एक फर्स्ट मिनट, और फोर्थ में। हाँ, शुभम was saying something. Yes, Shubham, go ahead. सर मेरे को इसमें कंफ्यूजन थी फर्स्ट और फोर्थ में। फोर्थ मैंने इसलिए एलिमिनेट करा था क्योंकि मेरे को हायर फोकस कहीं नहीं दिख रहा था। क्यों? प्रोडक्टिविटी है ना, इज द मोस्ट प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव सेक्टर, इंटेंसिव सेक्टर, एंड since technology this is the also the one with the most productivity enhancing characteristics. The evidence seem to indicate that other sectors are only capable of passively dealing as technology. तो इसमें आप ये तो कर सकते हो, हायर फोकस और प्रोडक्टिविटी. डिपेंडेंसी आपको कहाँ से लगा? सर डिपेंडेंसी मैंने इधर से निकाला था फंडामेंटल वेरिएबल से। क्या फंडामेंटल वेरिएबल? सिंस टेक्नोलॉजी इज द फंडामेंटल वेरिएबल। No, fundamental variable what? Determining productivity. He has not said that manufacturing depends on this. See, technology is a there are three things, na? Technology is a fundamental variable affecting productivity. It does not mean that manufacturing is dependent upon technological variable or breakthrough. Dependency थोड़ी है कोई उसकी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना? Got Yes, it, sir. मानव. सर मैंने थर्ड मार्क करा था, लेकिन इस वाले में जो ओनली जो मैंने देखा था, ये जो लिखा हुआ है ना, द एविडेंस सीम्स टू इंडिकेट दैट द अदर सेक्टर्स आर ओनली केपेबल, तो एक मिनट, आप गलत समझ गए ना. They are only capable of passively dealing. Now, it does not mean that technological breakthroughs happen only in the manufacturing sector. ऐसा है क्या? ये तो मतलब लॉजिक से भी आप रूल आउट कर सकते हो ना. Can we say that only manufacturing sector में ही technological breakthrough होते हैं? Can we say this? नहीं. See, ये बोल रहा है कि this sector's ability to create technological breakthroughs may be higher than other sectors. Agreed. Definitely, he is trying to say that manufacturing में technological breakthrough ज़्यादा होते हैं. But does it mean that उसी सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रू होते हैं? That you cannot infer. That is wrong in any case. अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन और आरसी में भी बताऊंगा, जो कि आपको क्वेश्चन का जो उसने ऑप्शन बना रखा है उसी से आप बोल सकते हो कि गलत है ना. तो ये आप इस तरह के जो ओनली आ जाए ना, तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए. ठीक है, चलो, ऑलराइट. दिस इज अ वेरी स्टूपिड काइंड ऑफ अ पैराजंबल. ओके, इवन आई गॉट इट रॉन्ग, सो आई कैन ओनली टेल यू, आई डोंट नो. मतलब I had started with 2 and then gone to 4 and all of that. But this fellow had some other idea in mind. So he has given the correct answer as 3412. Okay, evolution in man during recorded time has been social. It has proceeded not by heritable. Custom within a group correspond to type. New situations, however, do arise. I also started 2. 4 and 1 agreed. There is one clue. New situation, however, arise. Frequently repeated situations. Yes, 4 and 1 is definitely a pair that I was also able to decide. मैंने भी सर 2413 मार्क किया था. हाँ, तो मैंने भी उसको 2413 ही मार्क किया था. ठीक है सर, और मैंने फिर ये भी सोचा था कि 3 से स्टार्ट करके 3 4 नहीं, फिर मैंने 3241 भी एक बार सोचा था. ठीक है, दिस ऑल्सो मैंने भी 3 हाँ जी सर 3 मैंने भी 3 to 4 नहीं, मेरा आंसर तो देखिए 2413 था. ठीक है, मेरा आंसर 2413 था. तो अब इसने इसको ये बता के रखा हुआ है, तो अब ठीक है, इट्स ओके, यू मे बी राइट, जहाँ से भी उठा के लाया होगा उसको. बट आई वाज नॉट एबल टू रियली फिगर दिस आउट, एंड ठीक है, आई डोंट माइंड ऑल्सो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे इस तरह के अगर आ जाएंगे, सिर्फ हमें माइंड कब करना चाहिए कि अगर हमारा बहुत टाइम इसमें खर्च हो जाए तो. ठीक है. यस, शुभम. कुछ नहीं सर, वही बता रहा था कि 3241 मार्क करा था। कोई बात नहीं। यस भुवन। अब मैंने तो इसमें सर पहले ये मार्क किया था, ये 3241 मार्क किया था इसमें मैं तो। ठीक है, कोई बात नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि 2413 या 3241 जो भी है वो गलत है, यही सही है। ठीक है, उसको मुझे तो आई मीन ऑनेस्टली इट डजंट मेक सेंस टू मी, ठीक है। आई डोंट हैव मच टू से। यस अमन। नहीं, मैं इसमें बोल रहा था सर, मेरे को दो आइडिया लग रहे थे, या तो 3 स्टार्टिंग हो गया या 2। फिर मैंने दोनों पॉसिबिलिटी को लिख दिया था, उसमें से एक ये था 3412। नहीं, आपने मार्क यही कर दिया था? नहीं, मैंने मार्क 2431 किया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। 2431 तो देखो हो ही नहीं सकता। 4 और 1 का बहुत क्लियर पेयर है, क्योंकि ये कह रहा है कि दे आर रेडी एडजस्टमेंट टू टिपिकल एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटेड सिचुएशंस, हाउएवर न्यू सिचुएशंस अराइज। तो 4 and 1 आर एनीवे मैंडेटरी पेयर, है ना। तो अब उसके बाद में फिर बड़े सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे, छोड़ दो, कोई बात नहीं, लीव इट, नो प्रॉब्लम। यस, दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन दैट टेस्टेड अ लिटिल बिट। कंजर्वेटिव हु रेजिस्ट चेंज इज एज वैल्यूएबल एज अ रेडिकल, परहैप्स एज मच मोर वैल्यूएबल। तो ये तो यही मैंने बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो न्यू आइडियाज और ओल्ड आइडियाज है उसके बीच में जो एक टेंशन होती है, तो उसी के कारण आगे बढ़ते हैं। इस तरह की एक पैसेज हमने किया भी था, इफ यू रिमेंबर वी हैड डन अ समरी लाइक दिस अर्लियर, कि
और न्यू जब क्लैश होते हैं तो उसका कांस्टेंट कंपटीशन जो है दैट प्रिवेंट्स द सोसाइटी फ्रॉम ब्रेक डाउन, ऐसा कुछ करके याद आ रहा हो तो आपको। हाँ सर, उसमें एक ऑप्शन भी था हार्मोनाइजिंग करके भी। हाँ, इट इज गुड दैट द ओल्ड शुड रेजिस्ट द यंग, यंग शुड प्रॉड द ओल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखो, स्ट्राइफ बिटवीन यंग एंड ओल्ड इज नॉट डिफरेंट, तो ये तो बिल्कुल ही वाहियात टाइप का एक ऑप्शन है, इसको तो बिल्कुल ही हटा के फेंक दो। द टेंशन बिटवीन एडवोकेसी ऑफ न्यू आइडियाज एंड द रेजिस्टेंस टू देम प्रॉड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो इसमें इसको हम रख सकते हैं, ओके, दिस लुक्स ओके, वील कीप इट। Innovation takes place as a result of tension between various groups, the young and old, the genders and the classes। ऐसा कहाँ बोल रहा है वो कि innovation takes place as a result of tension between groups, young and old। Let's read this. It is also good that new ideas should be compelled to go through mill of objection, opposition. This is the trial heat which innovations must survive before being allowed to mend. It is good that old should resist, young should prod out of this tension, as out of strife of genders and classes comes a creative। So ये सेंस एक बहुत अलग तरीके से दे रहा है कि जैसे यंग लोग ओल्ड को चैलेंज करते हैं और जो स्ट्राइफ होती है जेंडर्स और क्लासेस के बीच में, तो उससे ही एक क्रिएटिव स्ट्रेंथ, स्टिमुलेटेड डेवलपमेंट मिलती है और ये सब होता है। तो ये इनोवेशन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ टेंशन बिटवीन वेरियस ग्रुप, दिस इज रॉन्ग वे टू इंटरप्रेट इट। ओनली दो, ये ओनली फिर आ गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज बी। सर प्रॉड का मीनिंग क्या होता है? सर मैंने 4 मार्क किया था सर, बस वो ओनली की वजह से गलत हो गया। देखो, ओनली ओनली कभी भी आए ना यार, तो बहुत केयरफुली इसको इवेल्युएट करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉड मतलब नज होता है भाई, टू नज अहेड, टू किसी चीज को आगे चलाना धक्का देके, ओके, टू पुश समथिंग। प्रॉड इज बेसिकली काइंड ऑफ अ पुश, मतलब पुश इन अ गुड सेंस, नॉट इन अ बैड सेंस, धक्का देके गिराने वाले के नहीं। आपको जैसे किसी को आगे बढ़ाना है तो आप उसको थोड़ा सा पोक करते हो ना, पोकिंग, व्हेन यू पोक, थोड़ा सा नज करते हो, तब वो आगे बढ़ता है। तो वो बोल रहे हैं कि सोसाइटी के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, ये लिखा ना यहाँ पे कि स्टिमुलेटेड डेवलपमेंट, और नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन नॉट वेरी गुड ऑप्शन, बट एनीवे जो भी है, अच्छे बन नहीं रहे इनसे आजकल समरी के क्वेश्चंस, ऐसा लग रहा है मुझे। ऑलराइट, whatever merits realism may have as an explanation for this, it is not a popular school. Realism's message, it makes good sense, does not have a broad appeal. It is difficult for a modern political leader। तो ये कह रहा है कि देखो यार, रियलिज्म जो होता है, तो रियलिज्म बोलने वगैरह में सब ठीक है, लेकिन ये पॉपुलर नहीं है। दैट मीन्स पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट इट। कि अगर सपोज करो कोई पॉलिटिकल लीडर कहता है कि आई एम परस्यूइंग पावर फॉर सेल्फिश रीजंस, or he states some such reason, then it does not have a broad appeal, because वो पॉलिटिकल लीडर जो है, अगर उसको अपने सैनिकों को भेजना है लड़ने के लिए और डाई करने के लिए, तो ये थोड़ी इस तरह से बोलेगा कि भाई मुझे सेल्फिश इंटरेस्ट है पावर बढ़ाने में अपनी। तो इसलिए क्या है कि वो इस तरह से प्रोपोगेट करता है कि इट इज अ क्लैश बिटवीन गुड एंड ईविल। देखो, वी आर द गुड फोर्सेज एंड सामने वाला ईविल है। जैसे पुतिन को भेजना है अपने सैनिकों को, तो वो क्या बोलेगा कि ये यूक्रेन जो है और जेलेंस्की जो है, ये बेसिकली ईविल लोग हैं और हम अच्छे लोग हैं, तो हमें इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी। इस तरीके से वो द लीडर्स टेंड टू पोर्ट्रे वॉर एज अ मॉरल क्रूसेड और एन आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट rather than a struggle for power. Realism is a hard sell, so they don't propagate realism. Okay, now we go to the question options. Realism loses out to morality as a reason that drives foreign policy। की बात कहाँ हो रही है? बात हो रही है their struggle for power, right? और war के ऊपर करने की बात होगी, तो ये गलत है। Leaders disguise their reasons to pursue power as a moral crusade or an ideological clash। इसमें क्या ये सही है? और नहीं है तो क्यों नहीं है, बताइए। सर रियलिज्म की बात नहीं कर रहा। रियलिज्म मिसिंग है। रियलिज्म इसमें मिसिंग है, रियलिज्म मिसिंग है, करेक्ट। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ का काफी पार्ट रियलिज्म के ऊपर फोकस्ड है। सो ही डजंट रियली से दैट realism is not popular or they don't resort to realism. That realism is not as popular as moral reasons to pursue power explains how leaders sell war. This looks to be okay. While realism explains this ill-advisable, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
So C becomes the correct answer here. Okay. Okay, पीछे पिछले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आ गया था कि इसमें थर्ड कैसे हटा दिया गया हमने। देखो ये नहीं कह रहा है कि इनोवेशन इज टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ, दैट इज नॉट हिज मेन आइडिया। इनोवेशन आने से क्या हो गया, इनोवेशन आने से फिर आपका डेवलपमेंट भी तो होना है सोसाइटी का, वो भी तो है ना, खाली इनोवेशन से थोड़ी होता है। और दूसरी बात ये कि ये जेंडर्स के बीच में ये कह रहा है कि जैसे यंग और ओल्ड और न्यू और ओल्ड के बीच में जो टेंशन है उससे इनोवेशन होता है, वैसे ही जैसे कि जेंडर और क्लास के बीच में जो लड़ाई होती है उससे एक क्रिएटिव टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है। तो इसलिए ये जेंडर और क्लास इसने कंपेयर करने के लिए लिया था, नॉट टू मेंशन दैट बिकॉज ऑफ दैट इनोवेशन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई दिस 3 वाज रॉन्ग। इसमें पहले वो वेरियस ग्रुप देखते हुए एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि वेरियस ग्रुप यहाँ ना वेरियस ग्रुप्स नहीं है इसमें। करेक्ट, थर्ड में वेरियस ग्रुप जो लिखा हुआ है, करेक्ट, और इसमें एज को एज एन एग्जांपल था। हाँ, एज कुछ का एग्जांपल है, करेक्ट। चलिए, नाउ दिस वाज अगेन अ लिटिल फनी काइंड ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक। ओके, सर सो आपने क्या मार्क किया था सर इसमें? हाँ जी, आपने क्या मार्क किया था इसमें? मैंने पता नहीं छोड़ दिया था, नहीं छोड़ा तो नहीं, तो सारे ही करे मैंने, लेकिन इसको मैंने 1 तो नहीं मार्क किया था। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना इसमें मेरे क्या क्या करेक्ट क्या गलत हुआ था, आई टेल यू दैट ऑल्सो। तो दिस वाज इसमें करेक्ट था, ये वाला इसमें करेक्ट था, ठीक है, दिस वाज करेक्ट, दिस वाज आल्सो करेक्ट, नहीं सॉरी दिस वाज रॉन्ग, सॉरी दिस वाज रॉन्ग, एंड दिस वाज करेक्ट, एंड दिस आल्सो वाज करेक्ट, दिस वाज रॉन्ग, ये मेरा गलत था। अब मुझे नहीं पता कि इसमें ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज एथनोग्राफिक राइटिंग इन्वॉल्व्स द रीशेपिंग ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू एड्रेस एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन, ऑल एथनोग्राफर नीड टू कंसीडर गैप। देखो इसमें जो मुझे लगा, हाँ सॉरी मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, कंसीडर द गैप, तो मैंने इसमें गैप ढूंढा कहाँ पे, राइट, तो ये गैप मुझे यहाँ पे दिखा एक, और एक गैप यहाँ पे दिखा, करेक्ट। आई एम श्योर आपने भी मोस्टली इसी तरह से देखा होगा इसको। यस सर, एंड थर्ड में मार्क कर दिया था, 3 मार्क कर दिया इसीलिए। तो अब देखो तीन इसमें mark। इसमें मैंने भी यही सोचा कि भाई गैप जो है, और ये गैप्स और गैप्स लिखा हुआ है, तो all ethnographic then is molded by the inevitability of dealing with the gaps between life and text, between local and anthropological perspectives. Because this involves the reshaping of experience, all ethnography need to consider the gap between text and lived. देखो ये इसके पहले तो मैंने इसको 2 लगाया था एक्चुअली, क्योंकि ये गैप बिटवीन टेक्स्ट एंड रियलिटी की ऑलरेडी बात है, और यहाँ पे फिर उसके बाद में उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। वही सर, मैंने भी सर 2 ही लगाया था सर इसमें। तो अब ठीक है, अब देखो इसका आंसर इसने 1 दिया है, अब ये जहां से भी उठा के लाया होगा ये, इसको मैंने और ये 1 पे बहुत अब्रप्ट लग रहा है, क्योंकि एथनोग्राफी की कोई बात हो नहीं रही उसकी बात वाली लाइन में। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको इनफैक्ट आई सर्च फॉर इट ऑल्सो ऑन द नेट कि ये कहीं से मुझे मिल जाए पैराग्राफ, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि ये 1 पे क्या बताना चाह रहा है, बट मुझे मिला नहीं, आई कुडंट फाइंड दिस पैराग्राफ एनीवेयर। सो अगेन दिस इज वन ऑफ दोज डाइसी क्वेश्चंस व्हिच इज देयर है, वो अब एक ठीक है तो क्या कर सकते हैं। यस सौरभ। सर सॉरी सर, मैंने बिना वो हैंड रेस करे बोल दिया था, इंटरप्ट कर दिया था। मैंने हम्म, 2 इसलिए मार्क करा सर, लाइफ एंड टेक्स्ट बोला इसने, है ना, हाँ, और ऊपर से बोला लाइफ टेक्स्ट लिव्ड एंड द लिव्ड रियलिटी, रियलिटी। लिव्ड करेक्ट। रियलिटी थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लगा मेरे को, फिर मैं और फर्म हो गया कि हाँ यार ये 2 पे ही जाएगा। नहीं ठीक बट है आई वाज देखो, सरप्राइज्ड व्हेन आई गॉट टू नो दैट इट्स नॉट नहीं रॉन्ग। दूसरा दूसरा क्या है, देखो एक लॉजिकल बात है कि यहाँ पे गैप्स लिखा हुआ है, ठीक है, फिर ये गैप्स लिखा हुआ है, दीज गैप्स, तो ये इसको रेफर कर रहा है, गैप्स गैप्स एंड देन गैप, ओके, बिकॉज बीच में आपने फिर एक गैप लगा दिया, फिर गैप्स इधर, तो दैट ऑल्सो वाज नॉट मेकिंग सेंस, तो मैंने उसको 2 पे इसलिए लगाया। पर ठीक है, ये अब सर भगवान गैप्स को के बाद सर, उसके बाद वो भी मेरे को ना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा, दोनों पॉइंट मेरे को फिर लगा कि पक्का 2 ही होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट मैच हो रहे। करेक्ट। तो मुझे नहीं पता कि ये अब देखना पड़ेगा स्टेटिस्टिक जाके कि कितना % लोगों ने इसको 1 पे लगाया, बट आई फाइंड मतलब मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसको 1 पे लगाया हुआ, तो ठीक है कोई बात नहीं, दैट इज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज क्वेश्चंस, फॉरगेट इट। ऑलराइट, ये बहुत इजी, देखो इसने जैसे भगवान ने एक हाथ से कुछ छीन लिया तो दूसरे हाथ में दे दिया, यस सर, इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भी, है ना। पैरा कंप्लीशन का इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें बोल रहा है व्हेन दिस बैशफुल एनिमल, तो भाई कौन सा बैशफुल एनिमल, ये पैंगोलिन, यू शुड ओनली नो दैट पैंगोलिन इज एन एनिमल, ये तो हमने कोविड के टाइम पे पढ़ ही लिया है,
पैंगोलिन तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए कि एक एनिमल होता है, राइट? तो देर इज नो अदर प्लेस फॉर दिस एक्सेप्ट वन. सो इसको मतलब उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, isn't it? तो ये तो यार हमें करेक्ट मार्क करना चाहिए. दिस वी शुड हैव गॉट करेक्ट. देर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन करेक्ट. Okay, however hard you may try to justify, if you mark this wrong, then I don't know. ऐसा नहीं करना है हमको. अगर किया है हमने तो इस तरह के क्वेश्चन रेयरली मिलते हैं, और मिले तो फिर छक्का मारने वाले होते हैं. Okay, so that does it. This was an easy question, very easy question. In fact, I would label it very easy. This was a absurd. इसकी definition absurd ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती. And this was okay, moderate, I would say. This was difficult थोड़ा सा था. ये वाला तो बिल्कुल ही absurd. Again, this one was difficult again थोड़ा, and this one was also difficult, and this was easy to moderate. So VX was overall, if you ask me, it was a difficult VA. Okay, चलो तो आगे चलते हैं. अब हम आरसी के ऊपर आते हैं. नाउ सी many of you rather, not lot of you, many of you keep speaking about आरसी. सो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. अभी जैसे अगर आप लोग 3 आरसी करने के चक्कर में मत, जो लोग people who are already comfortable and they are getting a good accuracy, I'm not talking about them, but generally if you are struggling, if your scores are, let's say, less than 20 or 20-25 के बीच में अगर आपके स्कोर होवर कर रहे हैं, तो आपको अभी ट्राई ये करना चाहिए that you do 2 RCs. Okay, you don't become too ambitious and attempt 3, and you do all the 8 VA questions. Okay, that should be the strategy. Now, out of these 2 RCs, the only thing that you should keep in mind is to select the right RCs. Okay, that is extremely important. Select the right RCs, क्योंकि इसमें अभी भी वो right RC select नहीं गई बार हो पा रही है. As I've been looking at, आप काफी लोग जो बात कर रहे हो मेरे से, many of you have reached out, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपने गलत आरसी पकड़ ली है. तो गलत आरसी पकड़ ली तो फिर और 2 ही करनी है अगर, तो फिर तो मतलब कि यू आर ऑलरेडी रनिंग अगेंस्ट और अपहिल. तो अब इसमें से कौन सी आरसी सिलेक्ट करनी है? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ अ सुपर जीन साइंटिस्ट. सुपर जीन इज अ ग्रुप जीन्स, डीएनए, डिस्टिंक्ट ट्रेट्स. कुछ इतना मजा नहीं आ रहा है इसको, तो इसको ठीक है, वील होल्ड इट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Samuel novel running out, picture looked bleaker, no poetry, novel fiction was lagging. We had already done this kind of a passage wherein the depth of a novel or depth of literature or literature की जो relevance है धीरे धीरे कम होती जा रही है novel की, ऐसे हम 2-3 कर चुके हैं. तो this looks okay. I will do it in the beginning. Okay, मतलब शुरू में करूँगा. Scale of response of environmental issues, localization. Now this is okay. Everybody knows about environmental problems, complex global localization. So we should take this also in the beginning. And then we come to this last one about the artificial neural network. Now, some of you, like Lakshita, says she had done a project in this in the college. If it's your sweet spot, then you can pick it up. But otherwise, I would put it on the 3rd. तो मैंने अपना जो बनाया उसमें 2, then 3, 4 and 1. So this would have been my order. This is what I decided. 1, 3, 2, 4. Okay. 1, 3, 2, 4 से I may not agree because super genes, ठीक है, you may have got all super genes में correct सारे हो गए, वो अलग बात है कि उसको करने का सुपर जीन्स में अगर सर बताऊं, सर मैंने ऐसे सिलेक्ट किया था अपना जैसे आरसी करने के लिए कि जैसे ये जो पहला मैं 3rd 1 और फिर 4 किया. सेकंड तो वैसे ही समझ नहीं लग रहा था कैसे होना है. सेकंड तो बहुत आसान था. सर मेरे को 3rd ज्यादा इजी लगा कंपैरेटिव. सबसे इजी मेरे को 3rd लगा था. फर्स्ट उसके बाद एंड फर्स्ट सबसे इजी लगा. 4th ओके था. देखो 3rd तो चलो सभी ने मेरे ख्याल से इसको किया ही होगा, बिकॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और ये तो सब लोग पता है सबको, है ना. अश्विनी, ये बताओ आप क्या बोल रहे हो? सर मुझे ना ये पूछना था, उस सेकंड स्टार्टिंग में देख के समझ नहीं आ रहा था. मतलब शुरू में तो वो डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि ना उसकी 2-3 लाइन पढ़ी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बोल क्या रहा है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया. बाद में तो मतलब किया था तब तो आंसर तो करेक्ट हो गए, लेकिन मुझे समझ में फिर भी नहीं आया बोल क्या रहा है. मुझे ना फर्स्ट वाला सही लग रहा था, कोई डायरेक्ट बात था. नहीं.
कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये भी अब पर्सनल चॉइस भी है। जैसे इसमें एक तो सी आई जनरली, आई मेंशन्ड अर्लियर आल्सो कि जिसमें 3 पैराग्राफ होते हैं मुझे वो अच्छे लगते हैं। ओके। उसमें क्या होता है कि जो आइडियाज होते हैं वो आइडियाज बहुत ज़्यादा नहीं होते। Okay, when you have fewer paragraphs, then you will not find too many ideas, and one idea can prevail. There will not be too many complications. But if you look at a paragraph like a passage like this, which has got 6, 7, 6 different paragraphs. So each paragraph, देखो एक चीज समझो आप, कि आई एम नॉट सेइंग कि ये डिफिकल्ट था या कुछ था, ये इसमें इस पे आई गॉट ऑल 4 करेक्ट। इनफैक्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो 3 या 2 4th वाला जो था डिवीजन में 1-2 गलत हो गए, तो आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली कोरिलेशन है, लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज कि जो इसमें ज़्यादा पैराग्राफ्स होंगे ना, उसमें थोड़े ज़्यादा आइडियाज होंगे, और इस तरह की चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब होगा, ये हो जाएगा, डोंट डिनाई, बट इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इस तरह के उसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें ज़्यादा डालने के हो जाते हैं पॉसिबिलिटीज। यस सागर, व्हाट्स योर पॉइंट? फिर मैंने इसमें आई थिंक मतलब मेरा ऑर्डर इसमें 4312 था जो मैंने रखा था, और उसके हिसाब से मेरा काफी गलत चला गया था आरसी के सेंस में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सेकंड वाला इजियर था, मेरे को भी लग रहा था, बट आई थॉट कि ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। जैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ का हाफ पढ़ा था समथिंग लाइक दैट, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब वो हो रहा था कि ये समझ नहीं आएगा, तो लास्ट में आई चोज कि 4312 ही करूंगा, एंड सेकंड मैंने लीव कर दिया। तो उसके हिसाब से फर्स्ट वाले में तो काफी गलत हो गए थे, मतलब मैंने 3 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 2 गलत हो गए थे एज माई थर्ड पैसेज। बट 4 and 3 तो कंफर्टेबल था, बट सेकंड बेटर रहता है। जब मैंने बाद में भी अटेम्प्ट किया था तो सेकंड वुड बी बेटर। हाँ मतलब देखो इसमें ये तो कोई डाउट नहीं था सभी को कि थर्ड तो करना ही करना है ना। अब Yes. फोर्थ में भी जैसे मैं देख रहा हूँ अगेन, फोर्थ में भी आप देखो कि इतने सारे पैराग्राफ्स, तो आई एम लिटिल वेरी ऑफ पैसेजेस विथ सो मेनी पैराग्राफ्स, because the more number of paragraphs means the more number of ideas, and the more number of ideas means the more time you have to spend on in getting into it. So मतलब मैं डिफिकल्टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ोगे तो सी हमारे पास तो टाइम, हमें तो टाइम चाहिए, टाइम बचाना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि लास्ट क्लास में आते आते जो लास्ट वाला होता है उसमें आई देन काइंड ऑफ गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन द पैरा एंड द क्वेश्चंस, देन आई डोंट काइंड ऑफ गिव द एंटायर फोकस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट टू डेप्थ, क्योंकि उसमें तो जितने भी मिल जाए क्वेश्चन उतने अच्छे हैं चौथे वाले में, तो है ना। तो ये है। यस शुभम, व्हाट्स योर व्यू? सर मैंने 4312 करा था। 2 मतलब मैं जब पढ़ रहा था ना तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था 2 में कहना क्या चाह रहा है वो, तो मैंने 2 छोड़ दिया था। और सर जब मैंने बाद में भी करा ना 2, मेरे को बाद में भी समझ नहीं आया, और ठीक है, क्वेश्चन भी सही नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सी यू डोंट हैव टू गो बाय व्हाट आई सजेस्ट, है ना। आपने उस दिन भी जो कैट 23 वाला भी, जो 22 वाला भी किया था हमने, उसमें भी यू हैड टेकन अ डिफरेंट ट्रैक, सो दैट्स ओके, ठीक है, दैट्स ओके, यू कैन हैव योर ओन दिस थिंग, नो प्रॉब्लम। यस अमन? हाँ यस सर, मैंने एक्चुअली ये जो ANN वाला है ना उसको पहले इसलिए रखा क्योंकि इसका एक तो इंग्लिश सिंपल था, और दूसरा इसके क्वेश्चंस फाइंड करना ना जैसे बहुत इजी हो गया था मेरे लिए। ओके ओके ओके, गुड गुड, और उसके बाद वो क्लाइमेट वाला तो सबने किया होगा। ठीक है, तो फाइन, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज इट गिव्स यू रिजल्ट्स। यस सागर? सर जैसे आप अभी कह रहे थे कि आपने फोर्थ पैसेज जो आप यूजुअली करते हो, जो लास्ट पैसेज होता है, तो आप पूरा नहीं पढ़ते, यू यूजुअली स्विच बिटवीन क्वेश्चंस एंड पैसेज एंड ऐसे करके। तो सर वो वाली एक बारी आप अप्रोच दिखाओगे लास्ट जब आप पैसेज डिस्कस करोगे, तो एक बारी वो अप्रोच दिखा देना कि मतलब कैसे क्वेश्चन रीड करके उस पे पहुंचते हैं, वो कैसे आंसर आता है। ठीक है, देखो इसके पीछे एक और ये रीजन है, एक मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रीजन है कि जो पैसेज आपने लास्ट में छोड़ रखा है, ठीक है, तो वो पैसेज वो है कि जो आपको लग रहा है कि यार ये इसका बहुत क्लियर आइडिया नहीं निकल रहा, इसके जो यू आर नॉट एबल टू गेट द ग्रिप ऑन द होल थिंग एज वन कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ राइटिंग, सो इट यू कैन, सो ऑलरेडी हमें पता है कि यार लास्ट तक उसको जाके वो टुकड़ों टुकड़ों में करना है उसको, है ना। देयर इज नो इंटेंशन कि उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हों, अगर उसमें से 2 या 3 भी हो जाते हैं तो दैट्स गुड। तो दैट इज द मेंटालिटी बाय विच आई अप्रोच दैट लास्ट पैसेज, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि इसमें पूरा समझने से मुझे कुछ फायदा है ही नहीं, क्योंकि अगर समझने लायक होता तो उसको पहले ही कर लिया होता मैंने, राइट। तो एक तो आपको इस तरह का मिलता ही मिलता है, तो ये भी एक उसके पीछे पर्सपेक्टिव है ना, कि जो एक लास्ट में बच गया वो लास्ट में वही बचेगा जो बेसिकली इसी तरीका का टेढ़ा मेढ़ा या उल्टा सीधा है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको अब मैं आपको जो ये वाला बताता हूँ, जैसे मैंने जो स्टार्ट किया, ठीक है। ये
सेकंड वाला था। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ये सब नाम वाम देने घबराने के लिए इतनी सारी चीजें दे रखी है इसने, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। इसका जो सिंपल प्रेमाइस इसका ये था कि जो नॉवल है धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है और ये ऑथर उसका गम मना रहा है, ही इज लेमेंटिंग, दैट्स इट। ओके, इनफैक्ट अगर आप इसका पहला क्वेश्चन देखोगे, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें सिंपल ये है कि ही इज बिमोनिंग द डिमाइस ऑफ लिटरेचर। Okay, so let's just quickly read this. As earlier this, Samuel had wondered if novel was just a fad whose time has already run out. इसी से आपको आइडिया मिल जाएगा ना कि ये 1758 में आदमी सोच रहा था कि क्या यार ये नॉवल कोई फैड तो नहीं जिसका टाइम खत्म हो गया है। By 20th century the picture looked far bleaker. ये देखो, this sentence reinforces this. So you already got the idea here. थियोडोर, सिर्फ ये नाम ऐसे दिए हुए हैं जो आपने शायद सुने नहीं हो, तो you unnecessarily got a little defensive. Felt that there could be no poetry, है ना, there यही could be रीजन था कि मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा था इसको कि नहीं, नाम देखने के बहुत बाद। सिंपल है। देखो, नो पोएट्री आफ्टर ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की लड़ाई जो थी ये बेसिकली नेपोलियन और रशिया के बीच में थी, 1800s के आसपास की बात है। तो उसने कहा भाई इसके बाद में तो पोएट्री का कुछ है ही नहीं। 1959 में ही कंप्लेन दैट फिक्शन वाज लैगिंग 50 years बिहाइंड पेंटिंग। अर्ली 60s में दिस गाय अटैक्ड द ममिफिकेशन ऑफ द नॉवल इन हिज 19th century इनकार्नेशन। 67 में ही पब्लिश्ड द लिटरेचर ऑफ एग्जॉशन in which he spoke of used upness of certain forms. सेम ईयर गोर वाइडल डायग्नोज दैट नॉवल वर्क। देखो यार कुछ नहीं है इसमें, आप लोग जबरदस्ती है इतने सारे, ही सिंपली रीइंफोर्सिंग द सेम आइडिया दैट सो मेनी पीपल आर सेइंग कि नॉवल, लिटरेचर, पोएट्री ये सब खत्म हो गया है। और उसने अलग अलग टाइमलाइन दिए चले जा रहे हैं कि ये तब से चला आ रहा है और अभी तक यही चल रहा है। ठीक है, द सेम ईयर गोर वाइडल डायग्नोज दैट नॉवल वाज इन डेथ थ्रोज। वी शैल गो ऑन फॉर a long time in talking of books, pretending all the while not to notice that church is empty and parishioners have gone elsewhere to attend other gods. अब ये एक इसने एनालॉजी बना दी यहाँ पे। ठीक है, वो कह रहा है कि हम इतने टाइम तक बुक्स की और इसकी बात करते रहेंगे, जबकि हम ये भूल गए हैं कि यार ये नॉवल पढ़ने वाले थे वो तो कहीं और चले गए, दे आर डूइंग समथिंग एल्स। तो उसका एग्जाम्पल इसने चर्च से दिया कि भाई ये चर्च तो एम्प्टी है और जो पेरिशनर्स हैं वो अब वो किसी दूसरे गॉड को अटेंड करने चले गए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हम खाली जैसे खाली कमरे में कुछ बोले चले जा रहे हैं, लोग तो पहले ही जा चुके हैं। The depth of literature as the world as we know it became a fashionable topic among US academics. Their argument was usually that English department had been hijacked by cultural studies, continental theory, political. तो इसमें बताओ मुझे क्या चीज समझने वाली नहीं है। यस मानव। सर मुझे ये पहले सेंटेंस का मतलब क्या है, नॉवल वन नॉट जस्ट अ फैड। वो बोल रहा है कि ये सोच रहा था, ही वॉज वंडरिंग कि इफ नॉवल वर नॉट जस्ट अ फैड, दैट मीन्स क्या नॉवल एक फैड मीन्स समथिंग दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, whose time had already run out. तो क्या नॉवेल जो था वो एक ऐसा फैड था जिसका टाइम खत्म हो गया है, ऐसा ये सोच रहा था। मतलब उसको 1758 में लगने लगा था कि नॉवेल खत्म हो गया है। नॉवेल एक छोटा फैड मीन्स कि कोई जो बहुत छोटे टाइम के लिए फैशन आता है ना, तो क्या वो नॉवेल एक फैशन था जो कि टाइम जिसका खत्म हो गया, बस खत्म। तो इससे हमें पूरा एक पैराग्राफ से समझ में आ गया। एंड देन since then two things have happened. The novel which was meant to fuse poetry and philosophy to subsume all other genres and even the entire universe has been reduced to literary fiction, a genre that approaches writing as if the 20th century had never happened. Yes, सौरभ आप बोल रहे थे कुछ बीच में। तो वही बोल रहे थे कि जैसे ना हमारी सर ये आइडियोलॉजी बन चुकी है, एक तो आरसी कर करके कि अगर बहुत सारे नाम होंगे तो भाई हमें वो याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारे ये किसने आइडियाज भी बोला आपको? होंगे। एक मिनट सर मेरी बन चुकी है सर ये कि कुछ नहीं कुछ तो है ना, मैं अब मेरे को एक सीखने को मिला कि जो आइडियाज होते हैं वो देखना चाहिए आरसी में, हाँ रादर देन फॉलोइंग द नेम्स एंड एनीथिंग एग्जैक्टली एल्स। अरे मैं जब रीड करता हूँ तो आई डोंट इवन लुक एट द नेम्स। उसमें क्या होता है आरसीज में, ये नाम इस यूनिवर्सिटी का, यहाँ इस जगह का, यहाँ पे इसने ये रिसर्च करी इस जगह पे, अरे उन सब से वो सब आइडियाज को दिमाग में बैठाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको तो ये देखना है कि भाई उसके थ्रू बताने की क्या कोशिश कर रहा है। नेम्स आर ऑल इंसिडेंटल। ये समझ। हाँ जी सर। सर आई नहीं थिंक मेरे सर, को ना सेम दो लाइनें चीज। नहीं पढ़नी चाहिए थी बस इसकी। मैं और अगर क्या। सारी पूरा पैराग्राफ पढ़ता तो मेरे को लग जाता कि हाँ ये इजी है, पर मैंने दो लाइनें पढ़ी, मेरे को लगा यार इसमें तो अब ये बहुत ज्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा तो इसे छोड़ देते हैं। नहीं अमन। यस। नहीं सेम चीज सर, लाइक कनेक्शंस वाला बात, क्योंकि नाम देख के डर गए। और एक्चुअली सिमिलरली कैट 22 में स्लॉट 3 में भी सिमिलर एक ऐसे ही टाइप का आया था जिसमें ना नाम भर दिए थे बट क्वेश्चंस बहुत, मतलब मेन आइडिया वाज वेरी सिंपल। करेक्ट। मैं देखो वही मैं बता रहा हूँ ना, पैसेज दो टाइप के होते हैं। एक जिसका मेन आइडिया सिंपल होता है वो आपको पूरे पढ़ के पूरे समझने। एक दूसरा जैसे बताऊंगा वो सुपर जीन वाला है, वो मतलब वो डिस्क्रीट ही है उसमें। अभी तक आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट इज दी ट्राइंग टू से, बट उसके सारे क्वेश्चन करेक्ट हो गए क्योंकि उसके क्वेश्चन अलग तरह से बनते हैं। आप एक बात देखो कि जिसने जो ये बना रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो लिमिटेड। ओके, ये कोई भगवान नहीं है, ठीक है, दे आर ऑल्सो लिमिटेड बाय देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर नॉलेज एंड व्हाट ऑल दे कैन आस्क, बिकॉज
एक पैसेज कहीं से निकाल के लाया हो आप आर्टिकल में से, तो उसको ऑब्वियसली अब स्टूडेंट को तो आप इतनी विजिबिलिटी दिखा रहे हो ना, तो उसमें से कोई ऐसे क्वेश्चन तो बना भी नहीं सकते जो कि वहाँ पे है ही नहीं, राइट। तो उनका भी काम डिफिकल्ट, तो आप समझो कि अगर वो डिफिकल्ट पैसेज लेके आएगा तो वो अपनी मुसीबत कर रहा है, उसमें वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है फिर। ओके, ही हैज टू गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ओके, सिंस देन टू थिंग्स हैव हैपेंड, नॉवेल सबस्यूम कर लिया, एट द सेम टाइम डिजिटल एज हैज टेकन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड टू अ न्यू लेवल। एज अ रिजल्ट डेविड शीट बिलीव नॉवेल इज नो लॉन्गर इक्विप्ड टू रिफ्लेक्ट द वाइटलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, urges us to stop writing altogether in order to focus on recombining the text we accumulated। बोला भाई अब रुक जाओ, मत लिखो, जो पुराने हमने टेक्स्ट लिखे हैं उसी को रिकम्बाइन कर लेते हैं। वी मे बी ऑल रीमिक्सोलॉजिस्ट, मतलब कि यार रीमिक्स ही करो, अब नए लिखने की जरूरत ही नहीं। बट वॉट इफ एज लुइस कैरोल वंडर्ड वर्ड कॉम्बिनेशन वर लिमिटेड एंड वी हैड ऑल यूज देम अप। तो क्या हो सकता है कि वर्ड कॉम्बिनेशन लिमिटेड थे और हमने सब यूज कर लिए हैं, तो अब खत्म कर दो लिखना। इवन ओरिजिनलिटी इटसेल्फ है नो लॉन्गर द एबिलिटी टू सरप्राइज अस, राइट्स दिस पर्सन। According to the author of this, we live in an unprecedented age of words, but one in which important novelists have given way to legend of keystroke laborers. Literature only survives as this, a parody of past forms, pantomime of itself, literature of exhaustion. Parth had envisaged how felt ultimacies could become the material crank. We are no longer writing literature's conclusion, but its epilogue. Ours is a literature this. तो ये यही बता रहा है इसी थॉट को, इसको हमें कोई बहुत डेप्थ में इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वेयर belated this literature today is thus no longer the thing itself. Again same thoughts reinforce अलग अलग तरीके से करे जा रहा है। Writer's task is to conjure the ghost of a tradition that has given it up. By this token, novels of these guys are not so much evidence of a nouveau Roman revival as instead of a new type of ontological fiction which explores the lost works futures। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला जो पैराग्राफ है, it called for some bit of understanding on all these things, but ठीक है कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। अब इसके क्वेश्चन देखना आप कितने सिंपल, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसके। द पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू सिंपल बीमोन द डिमाइज ऑफ लिटरेचर, राइट। बाकी के ऑप्शन को कोई मतलब ही नहीं। क्रिटिसाइज द क्वालिटी ऑफ नॉवेल्स, ही इज नॉट क्रिटिसाइजिंग द क्वालिटी ऑफ नॉवेल्स। अलर्ट द लवर्स टू द क्विकली डिसअपियरिंग, एक्सप्रेस एंग्स्ट अबाउट द लैक ऑफ एफर्ट, ही इज नॉट सेइंग कि वो लोग एफर्ट नहीं कर रहे हैं वो बोल रहा है कोई मतलब ही नहीं है, खत्म हो चुका है सब। सर एक्सप्रेशन ये जो वाला बता दूं एक बार दोबारा से, क्रिटिसाइज कहाँ से क्योंकि वो आपको बोल लगाया रहा है ये, ना कि क्या वो बोल रहे फैड हो रहे हैं, मतलब फैड हो तो रहे हैं तो नॉवेल्स तो कौन से फैड हो रहे कॉन्टेम्परेरी हैं? एक मिनट, ये क्या लिखा है यहाँ पे? कॉन्टेम्परेरी कंटेम्प्रेरी टाइम्स मतलब क्या होता है? अभी वाले। अभी का टाइम, और ये कब की बात हो रही है? तो मतलब सर तब से हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि कंटिन्यूटी, क्रिटिसाइज कर मैं रहा है बता तो क्वालिटी रहा ऑफ है कि नॉवल। 10। एक यार आप किस तरीके से पढ़ते हो ये बताओ मुझे। क्वालिटी ऑफ नॉवेल्स, मैं बोल रहा हूँ कि भाई नॉवेल जो है वो एक तरह का फैड है, फैशन है, जो कि शायद इसका टाइम खत्म हो गया। तो मैं क्या क्वालिटी को उसकी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ? अगर एक सपोज करो कि एक नया अभी थोड़े दिन के लिए एक फैशन आ गया जिसको कहते हैं बेल बॉटम, ठीक है, सब लोग चौड़ी चौड़ी बॉटम की पैंट पहन के घूमने लगे, और थोड़े दिन बाद वो खत्म हो गया, सब लोग फिर नॉर्मल अभी जैसे पहनते हैं उसके ऊपर आ गए। तो एम आई वी आर वी ट्राइंग टू, और हम फिर वंडर कर रहे हैं क्या ये एक फैड था जो गायब हो गया? क्या मैं उस क्वालिटी को उसको मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि यार उसकी क्वालिटी खराब थी यार इसलिए चला गया? फैड का क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं। ओके, यस सर, दैट्स जस्ट अ ट्रेंड। यस सर। ऑलराइट, expression the church is empty and parishioners have gone elsewhere to attend other gods, this is an, इसमें अब आप सिर्फ या तो मेटाफर सोच सकते थे या एनालॉजी सोच सकते थे आप इसको, राइट। तो ये मेटाफर तो है नहीं। मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर में आप डायरेक्टली एक चीज को दूसरा बना देते हो। जैसे आप अगर ऐसा लिखते हैं वहां पे कि नॉवेल्स आर चर्चेज whose parishioners have gone something, तो नॉवेल को ही चर्च बना दिया आपने। तो इस केस में बोल सकते हो आप कि ये मेटाफर है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया? यहाँ पे उसने कहा कि प्रिटेंडिंग ऑल द वाइल नॉट टू नोटिस दैट द चर्च इज एम्प्टी एंड पैरिशनर्स हैव गॉन, सो दिस इज एन एनालॉजी कि आपने नॉवेल और उसके पढ़ने वालों को कंपेयर किया चर्च और चर्च के जो विद पैरिशनर्स है उनसे, कि जैसे नॉवेल हम नॉवेल के बारे में बोलते चले जा रहे हैं, पता पड़ा नॉवेल पढ़ने वाले गायब हो चुके हैं सब, तो वैसे ही बोल रहा है कि चर्च में वो भाषण दिए जा रहा है, पता पड़ा कि उसके जो पैरिशनर्स दे ऑल गॉन टू अटेंड अदर गॉड्स। ओके, सो ये एनालॉजी है, दिस इज नॉट अ मेटाफर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो दिस इज अ एनालॉजी। यस मानव। तो एक चीज फिफ्थ में मुझे पूछनी थी कि फिफ्थ वाले में सी वाला इसलिए गलत है क्योंकि उसमें पॉपुलैरिटी ऑफ लिटरेचर क्या दे रखा है,
एक हाँ सेकंड, फिफ्थ वाले का थर्ड वाला ऑप्शन क्यों गलत है? अच्छा ये बताओ कि इसने जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना, ये कब से कब तक के दिए हुए हैं इसने? ये चालू हो गया था 1758 में और 20th सेंचुरी तक आया। उसके बीच में इसने पता नहीं किस किस जमाने के उसने आपको ये दिए एग्जाम्पल। तो आप ये कैसे कह सकते हो यार क्विकली डिसअपियरिंग? हाँ, और अलर्ट कर रहा है वो। अलर्ट इस तरीके से करते हैं। हम्म। ओके सर, ओके सर। मतलब देखो, क्विकली डिसअपियरिंग मतलब क्या होता है कि ऑथर लिख रहा है 2023 में और वो देख रहा है कि 2018 तक तो बहुत बुक्स बिकती थी, नॉवेल बिकते थे, और अब 2023 में सपोज एक स्टेटिस्टिक मार्केट में आया कि यार इस टाइम पे 1 बिलियन बुक्स वर सोल्ड। यहाँ आ गया कि यार ओनली 200 मिलियन बुक्स आर सोल्ड, और ये 1/5 हो गई। तो यार बहुत लग रहा है कि क्विकली डिसअपियरिंग पॉपुलैरिटी ऑफ लिटरेचर हो रही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब आप कह सकते हो। वो बात कर रहा है 1758 से लेके उसने 20वीं सेंचुरी के बीच में 85 उसने एग्जाम्पल दे दिए। तो हाउ कैन वी से क्विकली डिसअपियरिंग पॉपुलैरिटी? ना, वी कांट से, राइट? यस। Which of the following summarizes the changes that have happened since the early 90s as mentioned in this? ये तो साफ साफ लिखा हुआ है यार कि ये जो नॉवेल है, 2 things have happened। तो नॉवेल जो है, जिसको कि हमने सोचा था कि ये बहुत बड़े बड़े काम करेगा, हैज बीन रिड्यूस्ड टू लिटरेरी फिक्शन। मतलब कि ये एक तरह से इसने अपने आप को डीवैल्यू कर लिया है। और एट द सेम टाइम डिजिटल एज हैज टेकन इंफॉर्मेशन ओवरलोड टू अ न्यू लेवल। तो दो चीजें हुई हैं। तो ट्रिविलाइजेशन ऑफ नॉवेल हैज ओवरलैप विद द ओवर सैचुरेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। 3 becomes the correct answer. सर एक Novel बार has subsumed, it was supposed to subsume, okay? तो ये गलत है। ये लिखा हुआ है कि the novel which was meant to subsume all other genres, मतलब जो कि बाकी सबको खा जाता, ठीक है, तो वो खाया नहीं ना उसने, ये गलत है। नॉवेल इज नॉट कॉम्प्लेक्स इनफ टू रिप्रेजेंट डिस्पाइट, ये तो बिल्कुल ही सेंस ही नहीं है कोई इसका। नॉवेल हैज इग्नोर्ड द लेसन्स टू बिकम शैलो अगेन। यस शुभम। सर एक बार थर्ड का दोबारा मीनिंग समझाना। किसका? थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है, इसका मीनिंग ही समझ नहीं आया था मेरे को। नहीं देखो यार, वो ये कह रहा है कि ये जो नॉवेल है ना, इट वाज सपोज टू डू बिग थिंग्स। इट वाज मेंट टू फ्यूज पोएट्री एंड फिलोसफी, टू सबस्यूम ऑल अदर जॉनरेज, मतलब कि सब इसके अंडर में आए थे। मतलब ये सबसे बड़ा बनने वाला था। एंड इवन द एंटायर यूनिवर्स, मतलब कि इसके अंडर में सब आ जाता। इट हैज बीन रिड्यूस टू लिटरेरी फिक्शन। तो मतलब कि इसकी कीमत जो है वो बिल्कुल गिर चुकी है, खत्म हो गई इसकी कीमत, ये बता रहा है वो। तो ट्रिविलाइज हो गया ना वो। और इसके साथ साथ एक और चीज हुई कि जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है वो एक अलग लेवल पे चला गया है। तो दोनों चीजें आनी चाहिए ना इसमें। गॉट इट सर, गॉट इट। यस तनुज। सर इस वर्ड का मतलब बताना, ट्रिविलाइजेशन का। ट्रिविलाइज मतलब किसी किसी की डिमीन, डिवैल्यू। ट्रिविलाइज मीन्स टू डिवैल्यू। समथिंग इज ट्रिवियल मतलब क्या होता है? इफ समथिंग इज ट्रिवियल मीन्स हैज नो वैल्यू और वेरी लेस वैल्यू। ओके, ट्रिवियल थिंग्स, डोंट बॉदर मी विद ट्रिवियल थिंग्स, मतलब अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। ओके ओके सर, ओके सर। यस गौतम। Sir, once explain the option 1. The novel has subsumed. Option 1. हाँ, Once tell me, like it अच्छा। was given in the paragraph. No, what is given? What is given? That novel was to subsume, and but it has instead been reduced to literary fiction, मतलब whatever। तो इन इसका मतलब ये है कि it was supposed to do great things, but instead it has been reduced to very low level. That is the meaning of this sentence. Novel which was meant to fuse this, to subsume all other genres and even the entire universe, has been reduced to literary fiction. मतलब एक आदमी चला था राजा बनने और वो बन गया सिपाही या भिखारी। तो अब यहाँ आंसर दे दिया इसने कि नॉवेल राजा बन गया। नॉवेल हैज सबस्यूम्ड ऑल अदर जॉनरेज टू बिकम लिटरेरी फिक्शन। मतलब जो नॉवेल है उसने सबको अपने नीचे रख लिया और फिर भी वो सिपाही बन गया।
See, literary fiction means sipai, right? Yes. And it was supposed to subsume means everything will come under it. That means it will be the master of the universe. ये लिखा ना, and even the entire universe. Yes. But in the end, it ended up becoming literary fiction. So it has subsumed to become literary fiction. This is ridiculous. Okay. Right? Yes. See, language को match नहीं करना. Many times we just simply वहाँ subsume लिखा हुआ है वहाँ पे, हाँ subsume लिखा हुआ है, tick mark. Okay. यहाँ पे literary fiction लिखा हुआ है वहाँ पे, हाँ ये लिखा हुआ है literary fiction. चलो भाई यही आंसर. Please, मतलब this we should be careful. This is see, just try to understand their mentality. Who is making these options? Okay, he has to create 4 options. उस जरूरी है उसको 4 ऑप्शन तो क्रिएट करना है, तो क्या करेगा? इधर उधर से कुछ भी लैंग्वेज बना के कोई सेंटेंस, एक he will cobble up a sentence and he'll put it in front of you. So we should be careful enough to check whether it reflects the meaning in the similar way or it is grossly distorted. All right. Critics of modern literature have used all the following expression. ये तो दिया हुआ है इसमें साफ साफ यार, क्या क्या बन गया है ये देखिए. Literature has become a parody of past forms, a pantomime of itself. So parody of past forms, pantomime of itself. A literature that comes after literature. ये भी लिखा हुआ है. Ours is the literature which comes after literature. This is also given. Felt ultimacy, again ये language match करने वाली बात है, ठीक है. There is something mentioned about this, but not in this regard. What he says is, where Bloom's romantic poets felt belated vis-a-vis their predecessors, Ayer feels that we have come too late. Full stop. Literature thing, the writers conjure कहाँ गया वो felt, अच्छा ये रहा felt ultimacy. In the literature of exhaustion, Barth had envisaged how the felt ultimacies of our time could become the material of future works. So ये felt ultimacies of our time, ये तो एक just इसने expression यहाँ पे use किया. It doesn't mean that literature has given way to the survive only as a literary fiction, kitsch, past parody of past form, pantomime. ये थोड़ी है. तो इसलिए felt ultimacies of our time, this is the wrong thing. This is just copied from there. This becomes the answer. So I don't know. Maybe you found it difficult, the questions. So what is the view? Were the questions difficult? सर दो तो सर डायरेक्ट ही क्वेश्चन थे. 2 डायरेक्ट थे. Yes, 2 डायरेक्ट थे. 2 क्या, बल्कि मैं तो कहूँगा ये वाला भी 7th भी एक डायरेक्ट था. ये ठीक है, ये एनालॉजी और मेटाफर में अब फर्क हो तो आपको आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन में हो सकता है आप थोड़ा स्ट्रगल, बट लास्ट में क्वेश्चन में स्ट्रगल करने की बात नहीं थी, ये तो इसमें आ जाता. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ऑलराइट, यस शुभांगी. Sir, in the last question, what I used as a logic is, can we go to the passage? Yes. Yes. It's not visible on my end. Not visible. Still the questions. Oh, rest of you? Is it Yeah, visible? it's visible now. It's visible now. So, this guy Barth, he's not a contemporary writer, right? Because it has been mentioned in the first passage, 1967. So I thought that, like in the question, I think he's mentioned something about modern or contemporary. So I thought this guy should not be taken into account, and I discarded felt ultimacies of our time. Okay. ठीक है, but that is not a very good way to rule it out. Yeah. है ना? देखो, critics of modern literature have used all of the following expressions to highlight its debilitated state, except. So this guy is saying literature only survives as this. This is a debilitated state, a parody of past forms, a pantomime of itself. In the literature of exhaustion, Barth had envisaged how the felt ultimacies of a time could become this. So this is not something that he is describing कि literature ऐसा बन गया है. ये तो बता रहा है कि जो हमारे टाइम की जो अल्टीमेसी है, मतलब जो एंड है, अल्टीमेट, वो अगले मटेरियल का फ्यूचर वर्क्स बन जाएगा. Understood. है ना? वी आर नो लॉन्गर राइटिंग दिस, बट इट्स एपिलॉग. आर्ट्स इज द लिटरेचर व्हिच कम्स आफ्टर लिटरेचर. ओके, ठीक है, चलो फाइन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज नाउ. इसमें अब आई विल नॉट डिस्कस टू मच इन डिटेल बिकॉज दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इजंट इट? इसको कोई मतलब इसमें कोई समझाने की बात ऐसी है नहीं. किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, बट आई एम नॉट रियली going into the details of this passage. We can go to the question straight away. Which of the following has not been mentioned as one of the focus? Now, this was a little bit of a trick question because
everything is mentioned. Okay, somebody might say कि problems with localized consequences, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि pre-60s में क्या होता था, great deal of environmental concern was focused upon small scale localized problems. So this is given, right? So this is not the answer. Environmental consequences of human actions, ये भी दिया हुआ है. Concern, तो pre-60s फिर 60s, concern grew between interrelation between human actions and more complex environment. So this is also given. So this is also not the answer. Coordinated response needed for interconnected environmental issues. तो coordinated कहाँ पे है, वो यहाँ पे दे रखा है. By the early 1970s, recognition for not just the interconnectedness, but also that these are global problems that needed internationally coordinated responses. तो ये भी दिया हुआ है. Right now, environmental problems caused by overpopulation. तो यहाँ पे इसने ये पूरा this whole thing they have devoted to this, but they could not ascertain that there was a link between these environmental problems and the population growth. They tried to find a correlation, but they could not, because in case of China, there was a huge population growth, which led to increased land degradation. Lekin in northern Yemen and Kenya's this, it was related to population decline. Therefore, we can say that there was no correlation between these two. So, इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि this was one of the focus areas, and therefore fourth becomes the correct answer. Right? Okay. Yes, sir. The examples of land degradation in northern China, Yemen were mentioned in the passage to demonstrate that. Now here, okay, now I marked 2 here, whereas his answer is 4th here. Yes, sir, I also marked 2. तो मैंने भी 2 ही मार्क किया था. तो मतलब I don't know, I am still not very clear कि ये 2 उसने गलत बता दिया है. ये शुभम? सर मेरे को भी 2 और 3 में कंफ्यूजन थी. 3 तो है नहीं यार. देखो, land degradation cannot be linked to population size. This is okay, but because of complexity of population dynamics, this is not supported. सर कहीं सर एक्चुअली जैसे कैजुअल ये ग्रोथ एक्चुअली उसमें केनिया का एग्जांपल में डिक्लाइन था, तो कहीं उस वजह से तो नहीं ग्रोथ को हटा रहा इसको? नहीं जैसे पैरा के अंदर एक यमन और केनिया के अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन एक्चुअली उसमें बताया था लैंड डिग्रेडेशन में. तो साई उस वजह से शायद सेकंड ना हो, ये खाली ग्रोथ कह रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं होता ना. पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब डीग्रोथ भी आ गया उसमें. पॉपुलेशन ग्रोथ मींस डीग्रोथ आल्सो. देयर इज नो कॉजल रिलेशनशिप, व्हिच मींस कि अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो क्या लैंड डिग्रेड हो रही है? जरूरी नहीं है, क्योंकि एक कंट्री में हो रही है, दूसरी कंट्री में नहीं हो रही. सो देयर इज नो कॉजल रिलेशनशिप. तो मेरे हिसाब से तो सेकंड भी सही होना चाहिए था. यस मानव? सो ओवर सिंप्लीफाई द एविडेंस मतलब क्या हो गया? ओवर सिंप्लीफाई द एविडेंस कोई मतलब नहीं है यार. ये तो क्यों देख भी क्यों रहे हो आप इसको? Why are you even looking at this? See, are you seriously considering one? तो कंफ्यूजन था मुझे इसमें. देखो यार, आप क्या कर रहे हो ना, मैं देख रहा हूँ कि आप फालतू के ऑप्शन के उसमें जाके उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, और जो रियल चीज है उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे. भाई वो क्या बोल रहा है कि आपको इसका मतलब आर्गुमेंट समझ में आया कि ये यहाँ पे क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि लोगों को ऐसा लगा कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं दे आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, फॉलोइंग आर्गुमेंट सेट आउट बाय थॉमस माल्थुस. ये एक माल्थुसियन जो थ्योरी थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण क्या होगा कि अर्थ पे रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और इसलिए अर्थ जो है वो भूखी मर जाएगी, मतलब लोग भूखे मर जाएंगे. ऐसा उसकी थ्योरी थी. ठीक है, उसकी थ्योरी में एक बहुत बड़ा लकूना ये था कि वो ये सोच रहा था कि जब लोग बढ़ेंगे तो रिसोर्सेज भी नहीं बढ़ेंगे, वो उतने ही रह जाएंगे, खाने पीने को उतनी चीजें मिलेंगी. तो उसका ये कहना था कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब खाना पीना खत्म हो जाएगा तो अर्थ खत्म हो जाएगी. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो उसी लिए ये बोल रहा है कि द मिसगाइडेड सिंप्लिसिटी ऑफ दिस इज शोन इन स्टडी दैट हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन लैंड डिग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स. तो ये जो इसकी जो मिसगाइडेड सिंप्लिसिटी थी वही चीज हमें इसमें भी देखने को मिली है. Not only is the evidence contradictory, for example, population growth in northern China has been linked to increased land degradation, whereas in this it has been linked to population, but it is also clear that that from these studies that linking land degradation to one explanatory parameter, population size, masks the complexity behind population. तो आप अगर इसको
एक कोरिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर मास्किंग द कॉम्प्लेक्सिटी बिहाइंड पॉपुलेशन डायनामिक। तो मेन ये जो देने का कारण ये है, बताना चाह रहा है कि पॉपुलेशन और लैंड डिग्रेडेशन के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें सेकंड भी सही होना चाहिए, फोर्थ भी सही होना चाहिए। फोर्थ भी सही है, स्टडीज हैव फेल्ड टू कन्विंसिंगली एक्सप्लेन लैंड डिग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज, दिस आल्सो लुक्स ऑल राइट। तो मुझे नहीं पता इसने इसको हटा दिया, कुछ ना कुछ एक वेग सा एक एक्सप्लेनेशन देके इसको हटा दिया, जबकि खुद ही ये यहाँ पे कह रहा है कि स्टडी लिंकिंग लैंड डिग्रेडेशन मास द कॉम्प्लेक्सिटी। तो वी कैन डेफिनेटली से दैट देयर इज नो कॉजल रिलेशनशिप। मैं तो एटलीस्ट Sir, कहूंगा। if there is mass, the population complexity, then why third is incorrect? यस सर। सर आई जस्ट वांट टू नो कि मैंने भी सेकंड ही मार्क किया था, नहीं, बट एक मिनट उसमें एक मिनट। लैंड डिग्रेडेशन कैनॉट बी लिंक्ड टू पॉपुलेशन साइज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स। अच्छा, अब देखो आप यहाँ पे, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि it also is clear from these studies that linking land degradation to one explanatory parameter, population size, masks the complexity behind population dynamics and labor land relationships. तो दो चीजें हैं ना यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 3 को लगा रहे हो तो अगेन एक तो पार्ट लगा रहे हो आप, और दूसरा ये बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। वो कह रहा है कि दिस मास्क्स द कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ कह रहा है बिकॉज ऑफ, तो ये दोनों सेम चीज नहीं है। ओके, तो इसलिए 3 को तो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हो। यस तनुज, ठीक है। सर एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो। सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ सर आई जस्ट वांट टू नो कि मैंने भी सेकंड ही मार्क किया था, बट उसने जस्टिफाई कैसे किया हो कि ये गलत कैसे है? लाइक यू सेड कि दोनों ठीक है, तो फिर उसने क्या जस्टिफाई किया कि कैसे गलत किया इसको मुझे कुछ सेकंड नहीं में? समझ में आया उसका। मुझे कुछ समझ नहीं आया कैसे ओके। जस्टिफाई। इसीलिए आई एम सेइंग ना कि देखो, एक तो ये कि यार ठीक है, आई एक्सेप्ट कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया, उसने किया है अपना एक तरीके से, एज इज यूजुअल ही विल जस्टिफाई व्हाटएवर ही वांट्स, राइट। सो लेट्स लीव इट देयर, लीव इट एट दैट। कुछ क्वेश्चंस कुछ होते हैं इसमें से, जैसे मैं हर बार ही आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इसलिए इनको भगवान नहीं मानना चाहिए, है ना। वी शुड नॉट टेक देम सो सीरियसली। फाइन, इट्स ओके, मोर और लेस 3-4 पिछली बार तो और ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे पिछले 2 मॉक्स में, इस बार तो कम निकल रहे हैं ऐसे। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज, ये तो इजी है बहुत, डुअलिटी, यस सर, है ना, ये तो कलकत्ता। इजी क्वेश्चन कलकत्ता। है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसमें ये कह रहा है कि सिस्टमेटिक चेंज हैपन व्हेन एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम इज ग्लोबल, क्यूमुलेटिव हैपन व्हेन द, ये यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ। Cumulative change occurs when many discrete events become significant because their distribution is global, right? So systemic change occurs when there is a direct impact on the physically interconnected. तो इन दोनों से आप निकाल सकते हो इसको आराम से, right? So this C is correct. The small amount of tropical forest lost in this provide a good example of which, ये भी बहुत easy question है ना। इसमें साफ साफ इसने दिया हुआ है कि ये जो छोटे छोटे से, अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटी सी चीजें हैं, लेकिन when we add them up then they become very big, right? That's what he's saying. Discrete events in sufficient numbers can create a global impact. So A becomes the correct answer, right? Sir, how do we eliminate fourth option in 11th question? 11th, fourth, systemic changes occurs when systems are interconnected. इसमें ग्लोबल की बात कहाँ की है उसने? ग्लोबल लेवल पे होने चाहिए वो, राइट। दीज कैन बी एट लोकल लेवल, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इवेंट ग्लोबल, मतलब देखो सिस्टमिक चेंज जो बोल रहा है कि अगर ग्लोबल लेवल पे कोई इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, और क्यूमुलेटिव चेंज मतलब ये कि सपोज इंडिया में कुछ इशू है, सेम इशू किसी और जगह पे, अमेरिका में सेम इशू, यूरोप में, तो ये अलग अलग जगह पे हैं और ये इंटरकनेक्टेड नहीं है सिस्टम्स, ये सिस्टम अलग अलग है। देखो जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो वो ओवरऑल ग्लोबली जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। बिकॉज वी कांट से दैट कि इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो वेदर सिस्टम है, दिस इज डिस्क्रीट एंड इट डजंट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। जैसे एल नीनो है एक फिनोमिना, वो एल नीनो अफेक्ट कर रहा है हमको, तो वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे कुछ कहीं पे कुछ हो रहा है,
जैसे अगर एक फॉरेस्ट फायर लग गई, तो फॉरेस्ट फायर तो अभी ये ग्लोबल फिनोमेना थोड़ी है, इंटरकनेक्टेड थोड़ी है। अगर हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर हो गई, अमेरिका में कैलिफोर्निया में और हवाई में जैसे अभी फॉरेस्ट फायर हो गई, कनाडा में बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर वहां पे भी चल रही है, ग्रीस में भी बहुत जबरदस्त फॉरेस्ट फायर, तो इनका आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं, बट देन दे आर इंडिविजुअली डिस्क्रीट इवेंट्स, बट देन व्हेन दे एड अप देन दे बिकम वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसलिए इसमें यहाँ पे सिस्टम्स आर डिस्क्रीट लेकिन एट अ लोकल लेवल, और यहाँ पे एट अ ग्लोबल लेवल, ये नहीं बोला इसमें, राइट? ओके, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क्स में न्यूरल नेटवर्क्स लर्न द सेम वे एज ह्यूमंस डू। सो ये एक स्टडी बोल रही है कि यस दे लर्न इन सिमिलर वे, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज। तो ये जो रिसर्चर्स थे, इन्होंने ब्रेन वेव्स को ह्यूमंस को कंपेयर किया टू अ सिंपल साउंड और सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरल नेटवर्क, रिजल्ट्स फॉर अनकैनली अलाइक। तो हाउ ANNs learn, but how they may not come equipped with hardware and software designed for language. देखो अब ये जो इसका आइडिया है, दिस इज एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑफ नोआम चोम्स्की एंड स्टीवन पिंकर। याद है ये लोग कौन है? Does anyone remember Noam Chomsky and Steven Pinker? नॉम चॉम्स्की लैंग्वेज से रिलेटेड स्टडी किए थे। हाँ, लैंग्वेज से स्टडी। जो क्या था वो पैसेज याद है आपको? कैट 2021 का पैसेज था वो। नोआम चोम्स्की जो कहते हैं कि वी ऑल हैव ए इनेट ग्रामेटिकल कैपेबिलिटी, हमारे अंदर ग्रामर का एक जीन है एक तरह से, जो कि हम ऊपर से लेके आए हैं। तो इनेट लैंग्वेज कैपेबिलिटी हम लेके आए हैं। तो स्टीवन पिंकर ने उन्हीं के थॉट्स को आइडिया का एक बुक लिखी थी, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आप लोग भूल गए, ये पैसेज हमने किया था। सर याद आ गया, कराया था। आ गया याद? यस। उसमें फिर वो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म और उस सब की बातें भी हुई थी, रेसिज्म की। ऑलराइट, एनीवे, सो गेटिंग बैक हियर, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ह्यूमन ब्रेन्स मे नॉट कम इक्विप्ड विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर specially designed for language. So he's suggesting that language is picked up from the environment or from your surroundings. You don't come with a innate capability, right? So यहाँ पे अब ये एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो एक बा करके सिंगल सिलेबल उन्होंने 2 8-minute ब्लॉक्स में 14 स्पीकर्स और 15 स्पेनिश स्पीकर्स को प्ले किया। तो उनकी जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी थी वो रिकॉर्ड की गई, जहाँ पे फर्स्ट साउंड प्रोसेस होता है, और फिर उसके बाद में 2 डिफरेंट सेट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स पे बाहा साउंड प्ले की गई। एक इंग्लिश साउंड को ट्रेन किए गए थे, एक स्पेनिश पे। तो रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड किया प्रोसेसिंग एक्टिविटी फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, एंड दे फाउंड दैट दीज सिग्नल्स क्लोजली मैच द ह्यूमन ब्रेन वेव्स। तो रिसर्चर्स चोज अ काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर नोन एज GAN, जनरेटिव एडवर्सारियल नेटवर्क। इसमें 2 नेटवर्क होते हैं, डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर। जनरेटर क्रिएट्स अ सैंपल व्हिच कुड बी एन इमेज और अ साउंड। The discriminator then determines how close it is to training and offers feedback. तो ये जनरेटर एक साउंड प्रोड्यूस करता है और डिस्क्रिमिनेटर उसको एक फीडबैक देता है कि हाउ क्लोज इट इज टू द ट्रेनिंग। मतलब ये ऑलरेडी ट्रेंड है जनरेटर, ठीक है? तो जनरेटर उसको बताता है कि भाई ये एक्चुअल से कितनी दूर है अभी। फिर उसके बाद जनरेटर फिर उसको चेंज करता है, एंड सो ऑन until the GAN can deliver a desired output. Okay, in this study, discriminator was initially trained on a collection of either English or Spanish sounds, then the generator had to find a way of producing them. As a result of this training, discriminator also got better at distinguishing between real and generated ones. It was at this point, after the discriminator was fully trained, that they played the ba sounds. Team measured this. तो ये वही एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है उसमें। तो जो लाइकनेस है, it suggested that two systems are engaging in similar activities. Just as research shows that feedback from caregivers shapes incense production of sounds, फीडबैक फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क शेप्स द साउंड प्रोडक्शन। तो ये जैसे केयर गिवर है, पिताजी माताजी है, बच्चा अगर गलत तरीके से कुछ प्रोनाउंस कर रहा है तो बच्चे को बोलते हैं ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, तो बच्चा ठीक कर लेता है। उसी तरह से जो डिस्क्रिमिनेटर जो नेटवर्क है उससे फीडबैक आता है, तो जनरेटर अपनी आवाज को ठीक कर लेता है, ठीक है? तो ये सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी हो रही है, ये बता रहा है। एक्सपेरिमेंट ऑल्सो रिवील्ड अनदर इंटरेस्टिंग पैरेलल बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स। ब्रेन वेव शो दैट इंग्लिश और स्पेनिश वाले थे जो बाहा साउंड को अलग समझते हैं, सुनते हैं। ब्रेन स्टेम ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स रिस्पॉन्ड टू बाहा साउंड स्लाइटली अर्लियर देन ब्रेन स्टेम ऑफ स्पेनिश, एंड GAN trained in English responded slightly earlier than Spanish. This provided additional evidence that they are likely processing things in a similar fashion. Okay, so
नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पैसेज टू अंडरस्टैंड, वॉजंट इट? ठीक है, तीसरे पे भी किया तो कोई बात नहीं, आपने अगर पहले भी किया तो दूसरे पे भी कोई बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश वाला ज़्यादा टफ लगा दैट्स ओके। सर इसमें पैसे तो समझ आ गए, पर सर आंसर सारे गलत हुए मेरे। अच्छा, एक इसमें बहुत ट्रिक वाला क्वेश्चन है, अभी बताता हूँ आपको, मैं भी फंस गया उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? इसमें देखो ये मैंने सेकंड मार्क कर दिया। ओके, इसमें एक्चुअली ये उल्टा है, डिस्क्रिमिनेटर से जनरेटर को जाना चाहिए फीडबैक, राइट? कोई और फंसा क्या इस वाले इसमें? हाँ सर, ये हमें क्लास में बहुत स्ट्रेस करके बताया गया था, तो उस वजह से रहेगा गुड। अच्छा, ओ ओके, योर क्लास हैव गॉन टू दिस एक्सटेंट, ग्रेट। It was a 4-month extensive like learning on GNs. ओके ओके, तो देखो इसमें क्या है कि सपोज जैसे मैंने इसको पढ़ने शुरू किया, फीडबैक फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटर इज एम्ड टू मिमिक, ये बिल्कुल गलत है, राइट? बिल्कुल ही गलत है। सेवरल आइटरेशन ऑफ फीडबैक फ्रॉम जनरेटर टू, अब ये आप जब 2 पैसेज कर लिए, 8 VA क्वेश्चन पढ़ लिए, तो थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा सा कम काम करता है। तो जनरेटर टू डिस्क्रिमिनेटर है कि डिस्क्रिमिनेटर टू जनरेटर, एकदम से यू कांट, सो ठीक है, बट वन मस्ट बी अलर्ट इनफ टू नोटिस दिस काइंड ऑफ ट्रैप्स। दैट वाज अ लर्निंग फॉर मी। It is possible to compare the processing activity of different neural networks. Yes, तो compare कर सकते हैं processing activity. It is possible to train neural networks to identify syntactical difference. देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है। Syntax क्या होता है? What is the meaning of syntax? Structure, grammar और structure language की, right? लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और ग्रामर। तो यहाँ पे ग्रामर के हम क्या सिंटैक्स की बात कर रहे हैं कि साउंड की बात कर रहे हैं पूरे पैसेज में? तो साउंड की बात हो रही है ना, साउंड की बात हो रही है, तो सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस की तो बात ही नहीं हुई है पैसेज में, तो इसलिए इसको तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दो। आप बच गए, आपके पास में ये दो, तो ऑब्वियसली इसमें मैं तो मतलब आई मेड दिस स्टूपिड मिस्टेक, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर होना चाहिए। तो इट इज पॉसिबल टू कंपेयर द प्रोसेसिंग एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट neural networks. This becomes the answer by elimination. Yes. All right. It is implied by the statement, as a result of this training, the discriminator also got better at distinguishing between real and generated ones. That analysis involves entirely different. ये कैसे बोल सकते हैं? It is possible to differentiate between natural and artificial. ये तो कह सकते हैं हम, है ना? नेचुरल पे वो ट्रेंड हुआ है, राइट? और आर्टिफिशियल मतलब कि वो जो जनरेट हो रही है। तो जो डिस्क्रिमिनेटर है, सिंस इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, दैट मीन्स इट इज एबल टू डिसर्न द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो ये तो कह सकते हैं हम, ठीक है, वी कैन कीप दिस। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल साउंड्स डिफरेंटली। नेचुरल बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये तो बिल्कुल ही, तो छोड़ ही दो। Artificial neural networks do not process natural and artificial sounds similarly. I don't know what he's trying to say. Do not process natural and artificial sounds similarly. इसका देखो यहाँ पे हमें discriminator got better at distinguishing real and generated, ठीक है? तो it got better. तो अगर ये do not process this similarly, तो इससे कुछ सेंस नहीं बन रहा है इसका, तो इसलिए इसमें B becomes the correct answer. मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मतलब कि फोर्थ को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सेकंड को इन्फर कर सकते हैं तो फोर्थ को भी तो कर सकते हैं कि मतलब वो सिमिलरली नहीं मतलब प्रोसेस कर रहा, वो डिफरेंटली प्रोसेस कर रहा है, तो क्यों मतलब डिफरेंटली एलिमिनेट क्यों नहीं कर प्रोसेस पा कर रहा है? रहा। नहीं, हाउ डू यू नो डिफरेंटली प्रोसेस कर रहा है? कैसे तो पता? मतलब सेकंड में लिखा है ना, क्या? तो सेकंड को इन्फर कर सकते हैं तो फोर्थ को भी तो क्या कर चीज? सकते हैं ना। नहीं नहीं, एक मिनट, एक ये कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल साउंड, राइट? ये कह रहा है दे डू नॉट प्रोसेस दिस सिमिलरली। हाउ डू वी नोट दो इन व्हाट वे दे प्रोसेस? ये तो अलग स्टेटमेंट हो गया ना, यही स्टेटमेंट थोड़ी है ये। सी, एक नेचुरल पे वो ट्रेंड है, ठीक है, उसको एक इंग्लिश स्पीकिंग नेचुरल लैंग्वेज सुना दी कि भाई बा करके आएगा, तो ये बहा है, ठीक है, उस पर वो ट्रेंड हो गया, तो दैट इज अ नेचुरल। नाउ उसका जो जनरेटर है, वो जनरेटर नकली साउंड बना रहा है बहा की, तो उसको वो जब सुन रहा है, उसका जो डिस्क्रिमिनेटर है वो उसको बोल रहा है भाई ये अभी तो इतना डिफरेंस है इसमें ओरिजिनल से, जो नेचुरल है उससे इतना डिफरेंस है, तो उसको फिर वो ठीक करके दे रहा है।
फिर वो बोल रहा है अभी थोड़ी सी और कमी है इसमें। तो दैट मीन्स कि ये जो डिस्क्रिमिनेटर है ये नेचुरल और आर्टिफिशियल के बीच में डिफरेंस को समझ पा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग द फीडबैक एंड दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर, इजंट इट? Whereas ओके, तो ये प्रोसेस गलत है इसमें। ये बोल रहा है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डू नॉट प्रोसेस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल साउंड्स सिमिलरली। ये एक अलग ये दिस स्टेटमेंट वी कांट से, बिकॉज वो किस तरीके से उसको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, वो हमें क्या पता, वो हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि बस वो दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर लेता है। ओके, यस सर, गुड। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग पैरेलल। अब इसमें देखो आप ए और बी में कंफ्यूज हो जाओगे, इजंट इट? यस सर। जो लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है उसने कि जो ये जो इसने बताया यहाँ पे कि इंग्लिश और स्पेनिश स्पीकिंग में फर्क होता है कि जो इंग्लिश वाले होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू बा स्लाइटली अर्लियर, ठीक है। तो इंग्लिश एंड स्पेनिश ट्रेन मॉडल्स डिफर इन देयर रिस्पॉन्स स्पीड टू स्पेसिफिक साउंड्स द सेम वे इंग्लिश एंड स्पेनिश स्पीकिंग पार्टिसिपेंट्स डू। इंग्लिश एंड स्पेनिश ट्रेंड डिफर इन देयर रिस्पॉन्स टाइम बाय एग्जैक्टली सेम बाय अमाउंट। ऐसा नहीं बोल रहा है कि अगर ये 10 सेकंड के बाद में रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये भी 10 सेकंड के बाद में। वो कह रहा है कि उससे बाद में करता है, राइट, स्लाइटली अर्लियर। बट स्लाइटली अर्लियर वी कैन नॉट से दैट एग्जैक्टली सेम डिफरेंस, है ना। हो सकता है कि वो अगर सपोज करो कि जो इंग्लिश वाला है वो 10 और ये करता है 8 में, तो हो सकता है ये 9 में करता हो, वो 7 में करता हो, तो अर्लियर तो कर रहा है वो। या हो सकता है ये 5 में करता हो, या हो सकता है ये 8 में करता हो। तो हमें क्या पता कि डिफरेंस इनका सेम है। ये कह रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम, इसलिए ये गलत हो, राइट। Which of the following, if true, most strengthen the author conclusion? The results also suggest that human brains. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, है ना, ये तो बहुत दिल्ली। This was one of the easiest questions. This determined by training. We discussed this in the beginning also. इसमें किसी ऑप्शन में डाउट था क्या? सर ये अकेला क्वेश्चन था, मतलब सही किया जो जो। ठीक हुआ था। यस यस सर, सेम। इसी ने काउंटर किया था, मतलब 2 नेगेटिव मार्क। सही बात, तो पैसे में सारे गलत हुए थे। पैसे वैसे डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था सर, पर क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन भी हुआ था। कहीं जैसे 13 में फंसा था, यस सर, 14 वो तो मतलब अपनी कहीं स्पीड गलती से में। गलत हुआ है। 15 कंफ्यूजिंग था, 16 भी अपनी शायद गलती से गलत हुआ है। चलो कोई बात नहीं। आओ सुपर जीन देखें। ये सुपर जीन मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली आई एम स्टिल नॉट एबल टू मेक टू मच सेंस आउट ऑफ इट, बट चारों क्वेश्चन जरूर सही हो गए इसमें। तो यस सर, जैसे सेम। सागर है क्या वहां पर? सागर आप पूछ रहे थे ना इसको किस तरीके से करना है, का है? यस सर, यस सर। हाँ, तो देखो अब जैसे हमने पढ़ना शुरू किया, डेफिनेशन ऑफ सुपर जीन इज टेक्निकल, साइंटिस्ट आर्ग्यू is a group of genes that are inherited non-coding. You can produce two distinct, पर ये समझ भी नहीं आएगा एंड में ये बोल क्या रहा है इतना सारा। In that process, the maternal and this I mean ballad called recombination hedges nature's bets. तो इसके बाद में जैसे ये मैंने पढ़ा, कुछ बहुत ज्यादा समझ में आ नहीं रहा था। एक बार मैंने क्विकली इसको पढ़ा, मुझे एक चीज स्ट्राइक हुई इसमें, ठीक है, और वो चीज ये वाली थी। ये वाला पैराग्राफ पढ़ के कुछ सेंस मिला, है ना, you get some sense. To understand why that may be advantageous. Why that means, चलो ये recombination. Think about laundry. तो basket of white towels और red towels अगर आप इकट्ठा कर दोगे तो दोनों पिंक हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया। तो then many researchers, फिर ये कुछ समझ में ज्यादा आया नहीं, तो ठीक है क्वेश्चन पे चले जाए। We'll go to the questions. Author uses the laundry analogy to elucidate the point. Now इसको देखने के लिए हम पहले वाला पैराग्राफ में आते हैं। नाउ यू स्टार्ट रीडिंग लिटिल मोर केयरफुली, ठीक है। अभी जब पहली बार पढ़ा था तो इसको कुछ भी ध्यान से नहीं पढ़ा, ओके। तो देन यू लुक एट दिस कि दिस सेम मैकेनिज्म विद मिसअलाइनमेंट ब्ला ब्ला कुछ छोड़ो, बोथ सुपर जीन्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट बिकॉज देयर समटाइम अ बेनिफिट ऑफ हैविंग some sets of genes inherited together. In those cases it would be ideal to not have any recombination but to have the things that go well together stuck together for good. तो ये हमें कुछ सेंस मिल रहा है यहाँ पे कि जो सेम सेट्स ऑफ जीन्स आए हैं
तो इसको रिकॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए हमको, बिकॉज इट इज बेटर टू हैव थिंग्स दैट गो वेल टुगेदर स्टक टुगेदर फॉर गुड। तो उनको मिलाने की कोई जरूरत नहीं, लेट देम एग्जिस्ट सेपरेटली, देयर इज नो पॉइंट इन मिक्सिंग देम अराउंड। फिर उसका एग्जाम्पल इसने ये बता दिया कि टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट माइट बी एडवांटेजेस, थिंक अबाउट डूइंग लॉन्ड्री। तो आपको रेड टॉवल यहाँ पे है और व्हाइट टॉवल यहाँ पे है, तो यू माइट एज वेल हैव कंटिन्यूड विथ बोथ रेड एंड व्हाइट। आपको दोनों अलग अलग साथ साथ अलग अलग 2 टॉवल मिलते हैं, आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो पिंक बन गया वो। तो डू यू लूज दिस कैरेक्टरिस्टिक, जो जो इनके इंडिविजुअल के जो ट्रेड्स हैं वो लूज हो गए, तो ये नहीं चाहिए हमें। तो रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन कैन समटाइम्स बी डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ सेंस में, राइट? ऐसा कोई डिजास्टर थोड़ी हो गया, तो इसलिए इसको तो हम हटा देते हैं। The recombination is counterproductive as it lowers heterogeneity. So इसको we might be led to think कि यार ये भी आंसर हो सकता है ना, recombination is counterproductive as it lowers heterogeneity। तो इसको रख लेते हैं, लेकिन इसमें ये heterogeneity क्या सपोर्ट होता है? Is it supported heterogeneity? Both super genes and sex chromosome exist because there's sometimes the benefit of having some sets of genes inherited together. In some cases, it would be ideal to not have any recombination, but things that go well together, stuck together for good. So heterogeneity जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है, so I'll be viewing it a little skeptically. Sometimes it pays to keep combinations of genes. ये तो थोड़ा सा ऐसी vague सा आंसर है। Specific sets of genes that offer specific benefits together shouldn't be reshuffled. Yes. Now reshuffled मतलब कि remixed or recombined. So this recombination is captured here, and specific sets of genes that offer specific benefits ये यहाँ पे मिल गया हमको, right? Some sets of genes inherited together, things that go well together, stuck together for good. So ये यहाँ पे मिल गया हमें कि specific sets of genes that offer specific together shouldn't be reshuffled, and therefore D becomes the correct answer, not B, because this heterogeneity he has not talked about. So this needed a little careful look, but then this could be arrived at. Does it make sense? Yes, sir. Which of the following is true about a super gene? अब इसको elimination से करेंगे. Super gene is formed by pure accident. Can we say that? ये तो लिखा हुआ है कि definition is rather technical. Still argue simplest level super gene is the group of genes that are inherited together as a unit, often with a lot of other this. You can continue to produce two distinct. There's nothing here that shows that it is by pure accident. So this can be easily eliminated. A beneficial mutation inside an inversion is propagated as a super gene. ये तो देखा है हमने कि ये यहाँ पे एंड में कहीं पे लिखा हुआ है, एंड में नहीं, यहाँ कहीं लिखा हुआ है ये, हाँ ये लिखा हुआ है, any beneficial mutations arising within the inversion could then promote its spread as a super gene. So ये यहाँ पे हमें दिख गया, right? So we can keep this. If a suite of genes does not offer any evolutionary benefits, the super gene is stifled. ऐसा नहीं लिखा हुआ है, उसने ये लिखा हुआ है it is important inside that inversions themselves do not necessarily provide an evolutionary advantage. If a suite of genes is already well adapted to its surroundings, locking it into inversion will not suddenly allow it to take off as a super gene. तो इसका ये मतलब नहीं है कि if a suite of genes does not offer evolutionary benefit, super gene is stifled. Again, they are trying to match language here. Okay, just evolutionary benefit दिया हुआ है, वहाँ suite of gene दिया हुआ है, तो वो जोड़ के उसने एक sentence लगा दिया, तो ये गलत है. A super gene is propagated whenever a big chunks of genes is locked inversion. ऐसा नहीं है, उसने यहाँ पे कहा है कि जरूरी नहीं है कि जो locked in inversion है will become a super gene. तो यहाँ पे इसने ये साफ ही बोला हुआ है. So this is also not correct. Second becomes the correct answer. Right? Author believes that complex vital traits, aren't routinely secured as super genes because ये आंसर आपको लास्ट में मिलेगा. That fact may help to explain why complex vital traits
aren't routinely secured as super genes. Ordinary selection procedures are often sufficient to preserve the traits. तो ये जो ऑर्डिनरी सिलेक्शन प्रेशर्स होते हैं, इसी से ये ट्रेट्स प्रिजर्व हो जाते हैं. कहाँ गया? हाँ, तो इसी से वो हो जाते हैं, राइट? तो इन्वर्जन ऑफ अ सूट वेल अडेप्टेड टू इस तरह के ऑप्शंस वैसे ही रूल आउट कर देने हैं हमें. सिलेक्शन प्रेशर्स प्रिवेंट रिकॉम्बिनेशन. ट्री कॉम्बिनेशन की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई है इस तरफ. कॉम्प्लेक्स वाइटल ट्रेट्स वाला हमें लास्ट पैराग्राफ में बात हो रही है, और ये रिकॉम्बिनेशन तो यहाँ पे कहीं जाके बात हुई थी. तो दिस इज टोटली इररिलेवेंट. Ordinary selection preserves only a suite of genes locked in an inversion. Again, this is also language matching, nothing else. The beneficial mutations can be preserved even with ordinary selection. तो ये यहाँ पे है कि जो beneficial mutation आपके हैं वो आपके जरूरी नहीं सुपर जीन के थ्रू हो, they can be ordinary selection से भी वो preserve हो सकते हैं. Therefore, complex vital traits को जरूरी नहीं कि आप सुपर जीन से सिक्योर हो. सर मेरे को थर्ड में इन्वर्जन भी गलत लग रहा था. थर्ड में जो इसने इन्वर्जन लगाया ना, लॉग्ड इन इन्वर्जन, वो भी कहीं से नहीं हो रहा. हाँ ठीक है, ठीक है, you can say that. All the following are implied by the arguments presented in the last two paras of the passage except inversions do not occur to specifically provide an evolutionary. ये तो यहाँ पे साफ साफ बोला है उसने कि inversions जो है वो जरूरी नहीं कि evolutionary inversions themselves do not necessarily provide an evolutionary advantage. ये तो दिया हुआ है साफ साफ. तो inversion with a beneficial suit of gene may take off as super gene. ये भी दिया हुआ है कि if a suit of gene is already well adapted to its surroundings, locking it into it will not suddenly allow it to take off as a super gene. यहाँ क्या लिखा हुआ है इसमें? Inversion with a beneficial may take off. मतलब may take off ना, जरूरी नहीं है, लेकिन it may take off, हो तो सकता है. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी. Any beneficial mutation arising within the inversion could promote as a super gene. So this we can take कि दिया हुआ है. Genes locked together in inversion may develop beneficial, ये भी दिया हुआ है. Genes always, ये एक्चुअली यहीं से आप खत्म कर सकते थे इसको. ये जो always वर्ड है, जैसे यहाँ पे impossible है, ये always है, ये आप यहीं से मार्क कर सकते हो. ठीक है, तो इनफैक्ट ये बहुत क्लूज होते हैं ये इस तरीके के, only, always, impossible. These kind of extreme words or expressions should be looked at very, very carefully, and unless justified, you should rule them out. All right, so that takes care of this mock. Any remarks, queries, points? आज हमारा ठीक ठाक टाइम में इसको खत्म हो गया. So we can discuss some in general, anything you want to discuss about mocks, about preparation, about anything, whatever is there. The floor is open. सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इसी मॉक में जैसे वो एक वो जो न्यूरल वाला जो एक पैसेज था, वो आर्टिफिशियल और ह्यूमन में, जैसे वो पैसेज मेरे को क्लियर हो गया कि कैसे कह रहा है, बट मेरे क्वेश्चन सारे गलत हो गए उसमें. सर ये चीजें बड़ी होती है मेरे साथ, इसको मैं कैसे टैकल करूँ? देखो इसमें आपको नहीं, इसको आप एक ही तरीके से टैकल कर सकते हो, और वो ये है कि जैसे आपने सपोज इसमें 4 और 3 करा, ठीक है, आपने 2 और 1 को छोड़ दिया. अब आपके समझो 4 में आप बोल रहे हो कि भाई मेरे सारे गलत हो गए, 3 में आपके चलो 3 करेक्ट हुए सपोज. फिर आपने जब एग्जाम ये हो गया, उसके बाद में एट सम पॉइंट बिफोर लुकिंग एट द आंसर्स एंड ऑल, यू डू दीज 2 एंड यू फाइंड दैट इसमें आपके 3 करेक्ट हो गए, इसमें आपके 2 करेक्ट हो गए. यस सर. इसका मतलब ये है कि आपने गलत पकड़ लिया ये. अब क्या ये रूटीनली हो रहा है? क्या ऐसा रूटीनली हो रहा है? ओके, यू हैव टू लुक एट योर performances in mocks to see that if it is happening routinely, then that means कि बहुत गलत आप पकड़ रहे हो. मतलब इसमें या तो ये है कि भाई पैसेज समझ में आ गया, तो इसमें से ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सारे ही गलत हो गए. दैट मीन्स पैसेज समझ नहीं आया है, यू आर अंडर द फॉल्स इंप्रेशन. क्योंकि अगर पैसेज समझ में आ गया तो सारे गलत होना थोड़ा सा अनलाइकली लगता है मुझे.
What is your view on this? अब मे भी हो सकता है क्योंकि वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग लग जाते हैं ऑप्शंस में, ये भी बड़ा होता है, इस वजह से लगता है कि हम वैसे समझ गए पर यहाँ से फंस रहे वर्ड के चक्करों में, कभी मीनिंग बड़ा डिस्टॉर्टेड हो रहा है कुछ इस तरह से। तो ऐसे मेरे बाकी के 2 पैसेजेस में तो सारे सही हुए थे, जो बाकी के जो 2 उठाए हैं। नहीं तो आपने 3 उठाए थे, ये कह रहे हो आप? सर वो मैं ऑन शीट किया था ना, वो मतलब जब कल आया, जब कल भेजा था अच्छा ग्रुप अच्छा में, तब अच्छा, किया था मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो आप थोड़ा सा और इसको मतलब जस्ट इवेलुएट इट लाइक दिस, है ना? ये समन। नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे ना कभी कभी मैं टेक्स्ट में ना एकदम गायब ही हो जाता हूँ, मतलब मेरे को फिर समझ ही नहीं आ रहा है कनेक्शन कहाँ पे है, तो सही, और कभी कभी ऑप्शंस के मीनिंग भी नहीं समझ आते मेरे को, तो उसमें फिर गलत सही नहीं, ऑप्शन। ऑप्शन के मीनिंग क्या है? देखो कई बार ऑप्शन ये मीनिंगलेस बनाते हैं, उनका कोई मीनिंग ही नहीं होता। ओके, तो जो सही ऑप्शन होगा वो आपको समझ में आना चाहिए। बाकी जो ऑप्शन है, अगर वो ऑप्शन गलत है तो दे कैन मेक इट वेरी इलॉजिकल एंड विदाउट एनी सेंस ऑल्सो। जैसे कई सारे ऑप्शन जो बनते हैं, जैसे मैं बट आपको सर आपने ये भी कहा था ना कि जैसे आप ऑप्शन गलत मार्क कर रहे हो तो क्यों मार्क कर रहे हो, ताकि कॉन्फिडेंस आए, मतलब आप हाँ बोले थे ना कि हाँ आप गलत ऑप्शन को करो ताकि कॉन्फिडेंस आए, तो वही हाँ, मैं तो उसी उसको पॉइंट डिस्टॉर्टेड, में जैसे तो उसको 1-2 में हमने डिस्टॉर्टेड। ट्रिपलाइजेशन ये सब का देखा, तो वहां पे ना मैं एकदम गलत ही मीनिंग पकड़ लिया। नहीं वो मतलब फिर वो थोड़ा मे बी वोकैब की प्रॉब्लम है ना? इज दैट अ वोकैब प्रॉब्लम? हाँ बिकॉज सर, थोड़ा तो मेरे को लग रहा है कि वो कैब का प्रॉब्लम है। हाँ, तो थोड़ा सा वोकैब के ऊपर आप काम करो फिर, बिकॉज इट सीम्स कि वोकैब की अगर प्रॉब्लम है। बट जनरली क्या है कि जो ऑप्शन में वो डिफिकल्ट वर्ड्स ऐसे ज़्यादा लाते नहीं है, तो बट कभी कभी ले आते हैं, तो देन यू शुड बी आई मीन आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। शायद थोड़ा सा वोकैब की तरफ काम करो इसमें। यस गौतम। Sir, actually, my thing is regarding the Your VA voice part. is very faint. Can you raise your volume a little bit? Hello. Yeah. So my doubt is regarding the VA part. In this mock, if I see only out of 8 questions, only 2 questions are correct. Okay. So means in para jumble or else para completion thing, I was just getting confused. Means para jumbles may I was about to correlate 2 options. Means when there is connections, but remaining 2 options will be there now. So getting confused means if we see some 17th question, it was I think 4132, but मैंने 2413 mark किया था. Like whether it was coming at starting or else in the ending, like that it's happening. No, so what you are saying is that you were able to form the mandatory pairs. Yes. But you then jumbled up the pairs itself. Yes. Means suppose if it is 4132. No, so I'll tell you. This one, let's talk specifically about this. What you are saying is that you were able to figure out 2 and 4, and you were able to figure out 1 and 3. 1 right? and 3, yes, But yes. then you marked as 1, 3, 2, 4. No. I have marked as 4132. No, 4, 1, 3, 2. But then if you were able to figure out 2 and 4, then how can you mark 4, 1, 3, 2? Okay, so let's say, okay, let us evaluate this 4, 1, 3, 2. Okay. Now, 4, right up to the closing, everywhere, search for, sometimes believed, found things. So see, this passage is about what? Can you, if I want you to name or label it with one word, what is it about? About existed things like No, just one word. Anybody can tell me what is this passage about if I want to just label it with one word. Yes, Manav? Chemistry. This passage is about chemistry. Do you agree, Gautam? Yes, sir. Yes. So these scientists, they were what? Were they physicists, or they were astronomers, or they were biologists? What were they? Or mathematicians? They were chemists, right? Yes, sir. So you cannot start with 4, because this passage is about chemistry.
So you have to start with 2. You can't start with 4. Okay, now if you started with 4 and then when you went to 1, now what is the link? There also resided a mysterious alien vital force that brought inanimate objects to life. Okay, then you went to 3. No one knew where this ethereal. Fine. And then you went to 2. Although they had come, it still had a long way to go. So this you thought that it still had a long way to go, so therefore it should come in the end, right? Yes, means like they have concluded, means they have started saying about the history and then they have linked up the sentences and okay. No, they were saying, but then, see, so far, we had not even mentioned chemistry. So how can then we put chemistry in the last? That is the question that should have come to your mind. So what I'm saying is that if you make a wrong arrangement, then think over it. Okay, go over it in your practice sessions, assignments. Okay, go over it that, okay, you chose this, but what can be the inconsistencies in this, right? How can you introduce passages about chemistry? How can you put it in the end? That question should come to your mind, right? So that is the better way to learn, that when we are putting anything, okay, then whether it is making sense, whether it is gelling with something else or not, right? okay. Means that's what I was just able to link up the mandatory pairs, but where it was coming or else. No, but one mandatory pair only you link, na? That is the 1 problem. and 3, yes. See, important thing is opening statement and one mandatory pair. If these 2 things you get it, then you're narrowed down to only 2 options. Only 2 will be left. Okay, we'll work on it. Okay, we'll work on it. Yes, Ashwini. तो सर मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी हो रही है कि आप बोलते हो कि जैसे एक बार बना के मतलब ये डाल के मतलब जो भी बनाया हमने ऑर्डर तो उसके बाद पढ़ना है, लेकिन मतलब तब तक ना टाइम इतना हो रखा होता है, जैसे आप बोलते हो 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना, और उसके बाद ऊपर से दोबारा से पढ़ने लग गए तो भाई उसमें मतलब मैं कुछ मॉक प्रॉब्लम में मिल करने जाएगी तो को बोलते हैं थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं तो जब प्रैक्टिस करते हो तब करने की बात कर रहा हूँ ना। तब तो आपको कोई रोक रहा है क्या? आप ज्यादा टाइम लगाओ। सीखने के लिए तो Yes. टाइम लगा ही सकते हो ना कोई हाँ चीज। सर। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जब आप सीख रहे हो, जब मैं असाइनमेंट देता हूँ आपको, उस टाइम पे आप उसमें पॉन्डर करो ना, सोचो उसके ऊपर। देखो खाली क्या है ना, हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली नॉट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन डूइंग क्वेश्चंस इन नंबर्स, one after the other, and we want to come back with a vengeance. Okay, if 5 we have marked wrong, let me try another 10. I'll mark 8 correct. Again, you perform disastrously, you want 10 more. So that is not the way. You have to ponder, na, think why it is written like this. What is the meaning? Okay, how is this evolving? What is the story he is trying to convey? तो आप अगर इस तरह से जब तक सोचना थोड़ा सा नहीं सीखोगे ना, तब तक वो आप बहुत ही फिर एक शॉर्ट टर्म विजन से काम कर रहे हो, और बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक नैरो अप्रोच है ये। थोड़ा सा उसके ऊपर सोचो ना, जो आपने गलत किया असाइनमेंट में। जैसे उस दिन असाइनमेंट दिया, 10 क्वेश्चन है, उसमें आपके 5 करेक्ट हुए हैं, तो प्लीज गो थ्रू इट ना। डू यू एवर गो थ्रू इट अगेन, यार ये 5 का सही ऑर्डर क्या है, और व्हाई, मतलब व्हाई गॉन रॉन्ग इन दिस। यस ओके, करता तो हूँ। वो करना चाहिए हमको, ठीक है। चलो, यस और यस सर। ओके, ऑल राइट गाइस, सो इफ नो मोर क्वेश्चन देन वी वाइंड अप। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट अहेड। सी यू, बाय बाय। सर Yes, sir.